All right, I know it's going to be a very, very difficult session to do. How exactly to revise your paper, how exactly to revise. I know my subject is going to be SFM, but I can take the liberty that it's going to be more or less for the entire CA final. And CA Inter maybe you can apply because generally आपको revise कैसे करना है, attempt कैसे करना है, we are going to discuss about that. Before I start with anything, there are a few things we need to get it very, very sorted and very, very clear. Like the first question that I received, मतलब तुम लोग से पूछूंगा और तुम लोग का और क्या questions है. It will take me at least half an hour, 45 minutes just to discuss this. So बहुत छोटा छोटा चीज़ है and थोड़ा सा logically सोच करके मेरे को बताना कि आप लोग का thought process क्या है. Like his question, let me just start with that, फिर मैं अपना बताऊंगा. His question was that should we mug up and write the answers because the institute wants exactly their language in the answer paper, or should we write on our own? क्योंकि अभी I know there is so much going on the social media about the exam checking and all that. Everybody is uploading, and everybody is talking about how the exams have been checked and all. I don't want to get into the discussion of commenting about the institute, about the paper checking or about anything. It is out there, everybody is seeing that. उसमें क्या मैं कुछ कर सकता हूँ या आप कुछ कर सकते हैं? फिलहाल नहीं. लॉन्ग टर्म में if the rectification measures will be taken, will not be taken, we will see to that. Right now, for those who have the exam in the next couple of months, can you do something about it right now? Should you do something about it right now, or should you concentrate on your exams and study? Understand थोड़ा सा practically. It's not that we are not going to do anything about it. Whatever it is, जो भी process follow करके किया जाएगा वो किया जाएगा. I'm not trying to be diplomatic over here, but understand, being frustrated or कि रटा मारा हुआ आंसर्स पे भी राइट आंसर्स मार्क नहीं मिल रहा है. आई हैव मग्ड अप द आंसर, आई हैव रिटन एग्जैक्टली द इंस्टीट्यूट लैंग्वेज, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द मार्क्स. सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मगिंग अप एंड राइटिंग द आंसर? सो ये क्वेश्चंस है अभी बहुत जन के दिमाग में. इट डज नॉट मेक सेंस टू डू दैट. सो माई आंसर टू दैट क्वेश्चन वॉज, क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप इतना सारा मटीरियल मगअप कर सके? नहीं. So therefore Ratna is not an option. Since it is not possible, it is not an option at all. What is possible is that I understand the content. Because if you want to understand such a huge vast amount of syllabus huge है. CA final का difficulty level नहीं है. अभी I know a lot of memes and all have been brought up on AIR1 and all. मेरे को पता है वो सब काफ़ी कुछ हो रहा है. अब उसका क्या सोच है, क्या पर्सपेक्टिव है, वो अलग चीज़ है. मतलब सोचो, मतलब देखो, हर कोई अपना सी फाइनल में रैंक 1 लाया, कुछ तो सोच के लाया होगा. आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीबडी. आई नो मेरा बहुत गलत डायरेक्शन में मेरा कॉन्वर्सेशन जा रहा है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइज इज दैट कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट योर आउटकम नीड्स टू बी. कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, दैट इज नॉट योर क्राइटेरिया राइट नाउ. मतलब कम आउट ऑफ दैट कमेंटिंग वाला फेज एंड डू समथिंग टैंजिबल. अपना ऑब्जेक्टिव समझो पहले. सो राइट नाउ द ऑब्जेक्टिव इज टू क्रैक द एग्जाम. Mugging up is not possible. We will write our answers from our understanding. इतना वास्ट सिलेबस है. डिफिकल्टी लेवल सीए का हाई नहीं है. वॉल्यूम को मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम है. मतलब कोई एक सम देखोगे तो ऐसा नहीं कि पता नहीं क्या मैथ्स दे दिया, क्या डिफिकल्टी दे दिया. लाइक इफ यू सी एक एक पोर्शंस को डिफिकल्ट नहीं लगेगा सिलेबस आपको. वॉल्यूम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू टैकल. तो उसको रिवाइज कैसे करने का, उसका पेपर कैसे अटेम्प्ट करने का. अनदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है अबाउट, क्या बोलते हैं इसको, रिटेंशन. दैट इज अनदर क्वेश्चन दैट आई कीप ऑन गेटिंग कि इतना बड़ा सिलेबस कैसे रिटेन करें. तो ये सब चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा. अभी मेरा लक साथ देगा नहीं देगा, देयर विल बी अ कंपोनेंट ऑफ लक इन द एग्जाम. ओके, अंडरस्टूड. अब वो भी अगेन बिकम्स अ डिबेटेबल टॉपिक दैट लक इज मोर इंपॉर्टेंट एंड पढ़ाई इज नॉट इंपॉर्टेंट. वो सब चीज को छोड़ दो एक बार. राइट नाउ अंडरस्टैंड, इफ आई एम, एक बार लॉजिकली सोचो. अगेन आई एम नॉट गेटिंग इन टू द वीडियोज एंड द पेपर्स हु गेव राइट आंसर स्टिल नॉट गॉट द मार्क्स. मेरे हिसाब से 10 में से एक ऐसा केस होगा, 100 में से 2 ऐसा केस होगा शायद. आई एम होपिंग एटलीस्ट कि द परसेंटेज ऑफ दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस जहां यू रिटन ऑल द राइट आंसर्स स्टिल यू गॉटन अ 0 मार्क सपोज, मेरे हिसाब से ऐसा 2%, 4%, 5% केस में होगा. आई एम नॉट जस्टिफाइंग. इवन इफ इट इज 5%, फॉर दोज 5% किड्स इट्स एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग. उनके लिए बहुत गलत है उनके साथ. आई एम नॉट गेटिंग इन टू दैट डिस्कशन. बट द पॉइंट इज कि 95 लोगों का तो पढ़ाई करके पास हो रहे, राइट. 90 लोग पढ़ाई करके पास हो रहे या पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करके पास हो रहे. सो प्रोबेबिलिटी किस साइड में है? 90 वाले साइड में. सो वी नीड टू गेट इनटू दैट साइड. Honestly, I have not even gone through all the videos or all the stuff that is being circulated right now. So वो सब चीज़ें भी अपना दिमाग एकदम हटा लो. एग्जाम टाइम आ गया, भी एग्जाम के बारे में फोकस करो. मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? मेरे को अपना रिटेंशन हाई करना है. कैसे करना है? मेरे को एग्जाम में 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना है.
Now, one of the very basic advice that I give to all the students of CA final is, आप एक बार इमेजिन करो, सिंस आप फाइनल में हो, इंटर स्टूडेंट्स 10-12 का सोच करके रिलेट कर पाएंगे. जस्ट इमेजिन इफ यू आर गिविंग द पेपर, इंटर में छूटा होगा मार्क्स वगैरह कई सारे पेपर्स में. अगर जो पूरा 3 आवर्स का पेपर है आपका, आप इस लास्ट आवर में, 3rd आवर में जिस स्पीड में पेपर लिखते हो, अगर वही स्पीड से एग्जैक्टली पूरा पेपर लिखा होता तो एग्जाम क्लियर, मतलब पूरा पेपर कंप्लीट हो सकता है कि नहीं हो सकता है. थिंक अबाउट इट. The speed at which you are writing, the speed in which you are writing the 3rd hour of your paper, if you replicate, if you write the entire paper in the same speed, will your exam clear or not? Will you be able to complete the paper or not? You will be able to complete the paper. That is one thing that I personally recommend. I know every teacher will have his own way. कुछ लोगों ने, मैंने ऐसा भी सुना है कि आप 80 मार्क्स बहुत अच्छा से अटेम्प्ट करिए, 100 मत अटेम्प्ट करिए, ऐसा भी एडवाइस देते लोग. सबका अपना तरीका है सोचने का, सबका अपना एडवाइस देने का तरीका है. आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनीबडी. आई एम गिविंग यू माई ओपिनियन विद अ जस्टिफिकेशन. यू वांट टू टेक इट, यू डोंट वांट टू टेक इट, इज अप टू यू. बट सो फार विद माई नंबर ऑफ एग्जाम्स दैट आई हैव गिवन एंड विद द नंबर ऑफ एग्जाम्स माई स्टूडेंट्स हैव गिवन, आई थिंक दीज हैव क्लिक्ड. एंड मैं आपको हर एक लॉजिक, हर एक चीज का लॉजिक बताऊंगा. सो फर्स्ट थिंग इज, क्योंकि आप पेपर तो स्पीड में लिख सकते हो, आपका कैपेसिटी तो है ही, तो अगर कॉन्शियसली अपने दिमाग को बोल करके इसी स्पीड में पूरा का पूरा पेपर लिखने का, तो वर्कआउट नहीं करेगा. इट विल कम डाउन टू 70 मार्क्स पर हाफ एन आवर. तो आपको घड़ी देखते रहना पड़ेगा कि एवरी हाफ एन आवर में, एवरी 30 मिनट्स में एम आई कंप्लीटिंग 17 to 20 मार्क्स और नॉट. टारगेट रखो 20 मार्क्स का, तो 2.5 आवर्स में 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाता है. 5 हाफ एन आवर के स्लॉट्स हुए एंड लास्ट में हाफ एन आवर बचेगा. आपका 20 मार्क्स टारगेट नहीं अचीव होगा. सो 17-18 तब टारगेट करो 20 मार्क्स इन एवरी हाफ एन आवर, सो दैट यू आर एबल टू कंप्लीट द पेपर एटलीस्ट. इफ आई राइट अ पेपर ऑफ 80, आउट ऑफ विच मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा 20-30% एरर रेट होगा, शायद 20 का मैंने रॉन्ग आंसर्स किया होगा, उसमें से 60 बचा. 60 में से मेरा 10-50 मार्क्स सब्जेक्टिव है, हर जगह फुल मार्क्स नहीं मिलता है, उसलिए कटा, मेरा बचा 45. व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी यू हैव? 5 मार्क्स का. पास और फेल में खाली 5 मार्क्स का गैप है आपका. बट अगर मैंने 100 मार्क्स अटेम्प्ट किया है, अगेन 25 शायद उसमें से रॉन्ग किया होगा मैंने, उसमें से 75 मेरा बचा है, उसमें से शायद 15 to 20 मार्क्स भी अगर सब्जेक्टिव के लिए कटा होगा, तो मेरा कितना बच रहा है? 55 मार्क्स बच रहा है ना. मैंने 5-5 इंक्रीज किए, रॉन्ग में भी और सब्जेक्टिविटी वाले पार्ट में भी. आई एम गेटिंग 55 मार्क्स. द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज नाउ 15 मार्क्स. और वो भी इसको कंजर्वेटिवली नहीं लोगे. जस्ट बिकॉज यूर राइटिंग फास्ट डज नॉट मीन योर आंसर्स आर गोइंग टू बी मोर रॉन्ग. आता है, अपना छूटता है. ऐसा नहीं कि इफ यू आर अटेम्प्टिंग एन 80 मार्क पेपर, यू डोंट नो एनीथिंग इन द 20 मार्क पेपर. यू नो 20 मार्क पेपर में भी सेम प्रपोर्शन में. सो इन दैट केस अगर 5 बढ़ाओगे तो ये 65 नहीं हो गया. 65 to 40 में आपके पास 25 मार्क्स का मार्जिन ऑफ एरर है. सो दिस इज माई बिलीफ. सो इफ यू वॉन्ट, आई वुड सजेस्ट यू, माई सजेशन वुड बी 100 मार्क्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का. कैसे क्या स्पीड बढ़ा सकते हो, आई विल कम टू दैट. वन वाज कि आप कॉन्शियसली अपने दिमाग को बोले कि फर्स्ट 1 आवर में मैं वो स्पीड में लिखूंगा जो लास्ट 3 आवर्स में होना चाहिए. फर्स्ट हाफ एन आवर में 20 मार्क्स कंप्लीट नहीं होगा. बट जब 20 नहीं, हर घड़ी देखना 20 मार्क्स, 10 मार्क्स, हर 15 मिनट में 10 मार्क्स, 20 मार्क्स हुआ कि नहीं. जब देखोगे तो स्पीड अपने आप ही आधे घंटे में बढ़ाना चालू कर दोगे. जो स्पीड का इंक्रीज यहाँ पे ऐसे होगा, वो स्पीड का इंक्रीज यहाँ पे ऐसे हो जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ? यू स्टार्ट पिकिंग अप स्पीड हियर. You need to start picking up speed here only. Very logically I am giving you all this. So this you need to understand. That is one. उसके बाद में, so these kind of tricks I got to discuss. So पहले attempt, paper का ही attempt बताता हूँ, फिर revise कैसे करना उसमें आऊँगा. Let me see, I don't want to miss out anything. So one, you need to attempt 100 marks. दूसरा चीज, mugging up is not going to help. बिकॉज मगिंग अप करोगे तो एग्जाम में अगर केस स्टडी आ गया, लॉट ऑफ पीपल आर सीइंग केस स्टडीज आ सकता है, इलेक्टिव्स में भी आर सीइंग केस स्टडीज, क्वेश्चंस घुमा के आ गया तो, बिकॉज इंस्टीट्यूट मटेरियल इज नॉट प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यू नो दैट. एटलीस्ट फॉर एसएफएम यू कैन सी, कॉस्ट के लिए आप लोग बोल रहे हो, मैं मान रहा हूँ. सो एसएफएम का एटलीस्ट आई कैन वाउच फॉर दैट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जो दिया हुआ इंस्टीमैट में, इट्स एब्सोल्युटली नॉट सफिशिएंट. हार्डली 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करके दे दिया डेरिवेटिव्स में. कहां से 5 क्वेश्चन में डेरिवेटिव्स हो गए? ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल. एंड पीएम में अगेन यू हैव टू रिलेट पुराने प्रैक्टिस मैनुअल को इसके साथ में. सो प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट मटेरियल खाली इज नॉट गोइंग टू बी सफिशिएंट, एटलीस्ट फॉर एसएफएम आई कैन वाउच फॉर. बाकी सब्जेक्ट्स तुम लोग अपना देखो. मगअप करना पॉसिबल नहीं है, आपको अल्टीमेटली एक्सप्लेन करना पड़ेगा. देयर इज नो स्टीरियोटिपिकल फॉर्मेट दैट यू हैव टू फॉलो. दैट्स अनदर क्वेश्चन आई गेट. ये एग्जाम में क्या फॉर्मेट में देना है? पहले वर्किंग नोट देंगे फिर सम करेंगे, या पहले सम करेंगे फिर वर्किंग नोट देंगे? प्लीज डोंट बॉदर अबाउट दिस. यू डू योर आंसर, यू गेट योर सम डन.
You get your answers done. Nobody is going to bother about it. कोई भी अगर ढंग का कॉमन सेंस वाला अगर एग्जामिनर होगा तो वो ये सब नहीं देखेगा कि आप किस सीरियल ऑर्डर में देखें. एंड यू डोंट हैव, इट्स नॉट पॉसिबल टू राइट इट इन द सीरियल ऑर्डर. यार जो बुक का सोल्यूशन जिस ऑर्डर में दिया हुआ है आप उस ऑर्डर में थोड़ी मगअप करके दे सकते हो. देयर इज नो फॉर्मेट एज सच. हाँ, अकाउंट्स का फॉर्मेट होता है, लॉ का कुछ फॉर्मेट होता होगा, बट कोई फॉर्मेट ऐसे हर आंसर का कोई फॉर्मेट नहीं होता. फॉर्मेट इज सिंपल, यू नीड टू एक्सप्लेन. हाँ, लॉ का क्वेश्चन में बोलते हैं लॉ स्टेट करो, केस के साथ रिलेट करो उसको एंड फिर अपना कंक्लूजन ड्रॉ करो. दैट इज फाइन. दैट यू नीड दीज 3 पॉइंट्स इन दी आंसर. देयर इज नो फॉर्मेट एज सच. इवन इन द क्वेश्चन यू नीड टू एक्सप्लेन. मेरे को कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है तो मेरे को केई फॉर्मूला डाल के केसी निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो मेरे को केसी डाल के निकालना पड़ेगा. केसी इज इक्वल टू WD KD 1 - P + KEWE. केई को मेरे को निकालना पड़ेगा. के इज इक्वल टू RF + RM - RF बीटा. सो वट एवर फॉर्मुलाज आर रिक्वायर्ड आई हैव टू अप्लाई दोज. आई हैव टू कम विद द आउटपुट. फॉर्मूला लिखा, उसके नीचे फिगर्स लिखा, आंसर निकाला. दैट इज फाइन. टाइम नहीं होगा तो मैं RF + RM - RF बीटा के नीचे में डायरेक्टली आंसर लिख दूंगा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके. इफ आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम I will do that. Instead of writing that one line extra, I might as well focus on completing the entire paper. फालतू का पेंसिल से ड्रॉ कर करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. मेरे लिए 100 मार्क अटेम्प्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 2-4 मार्क नीटनेस का काटते तो काटने दो. Nobody cuts marks for neatness at CA final level. I'm not saying that आप अपना पेपर कचरा करके लेके आओ. Your paper needs to be legible. So you space out the paper more. It need not be a very beautiful handwriting. It needs to be legible. मैं अगर पेपर देखता हूं तो मेरे को बिना मेहनत किए पेपर रीड करने लायक होना चाहिए. अल्टीमेटली who's going to give the marks? The examiner. तो एग्जामिनर को इरिटेट मत करो ना. आप अगर उसमें से ब्लू कलर का पेन से लिख रहे, आई डोंट नो पेन दोनों कलर अलाउड है कि एक ही कलर अलाउड है? ब्लैक अलाउड है. तो उसमें अगर आप ब्लू से अंडरलाइन करते हो कोई वर्ड्स, आई डोंट थिंक इट शुड बी अ प्रॉब्लम. या पेंसिल से अंडरलाइन कर दो. अंडरलाइन नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. ब्लैक पेन से लिख रहे हो ना, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दो. मत टाइम वेस्ट करो. पेंसिल रखा, पेंसिल उठाया, पेन रखा है. नॉट, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट. इट नीड्स टू बी, हाँ, उसको किच करके काटोगे, कर्ली करोगे, वो सब नहीं करने का. What you need to do is the paper needs to be legible. What I'm trying to say to you is it needs to explain what is required and it needs to be legible. You explain in your own words, please go ahead, you do that. That is at least my opinion, because mugging up is not possible for me. So why do I even contemplate the idea that I need to mug up and write the answers? It does not make sense to even evaluate that, right? So mugging up is not going to be a solution to that. And with this kind of volume of syllabus, it's not possible to mug up. The problem with CA final is only the volume part, understand. And even CA enter, the volume is quite high now. So the problem is the volume. Retention पे आऊँगा क्या करना है उसका. दूसरा चीज what you can do is when you have the question paper, आपको क्वेश्चन पेपर पे कोई भी चीज लिखने के लिए मना है. दैट इज बिकॉज लोग क्वेश्चन पेपर पे लिख करके क्वेश्चन पेपर्स एक दूसरे को पास करके चीटिंग कर सकते हैं. द फर्स्ट थिंग दैट आई यूज्ड टू डू इन माय एग्जाम वाज राइट द नेम ऑफ योर ओन नेम ऑन द क्वेश्चन पेपर. बिकॉज अगर आपने नाम लिख दिया मतलब इंटेंशन इज नॉट टू चीट. बिकॉज इफ यू पुट योर नेम एंड यू एक्सचेंज क्वेश्चन पेपर्स विद समवन, द पर्पस इज डिफीटेड, राइट. मैं तो क्वेश्चन पेपर में क्या करूंगा, अंडरलाइन करूंगा, सर्कल करूंगा. 15% आया सर्कल, के ही लिख दिया सपोज. एग्जामिनर को प्लीज आस्क एंड राइट दैट आई हैव रिटन माय नेम ऑन द पेपर, एम आई राइट टू जस्ट राइट. मतलब 7% इंटरेस्ट है तो क्या मैं उसके ऊपर INT या KD या D या E या ये सब लिख सकता हूँ क्या? अगर खिचखिच करता है तो नहीं माथा लगाने का. पूछ लो इन्विजिलेटर को. नहीं पूछना, इफ यू थिंक दैट यू नो इट विल बी टू मच ऑफ अ कमोशन, सो डोंट अवॉइड दैट. बट व्हाट हैपेंस इज द मोमेंट यू आर रीडिंग द क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते KE 15 सजाना नहीं, इक्वल टू मत डालो, टाइम नहीं है तो. पढ़ते पढ़ते नजर नहीं हट रहा है, KE इक्वल टू 15, RF 8% भी मत डालो. बेसिकली व्हाट हैपेंस इज यू डोंट हैव टू रीड द क्वेश्चन. और क्वेश्चन जब पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट अंडरलाइन करते जाओ कि ये चीज मेरे को वापस देखना पड़ेगा, सो दैट इट्स इजियर टू रीड द क्वेश्चन अगेन. एक बहुत बड़ा अगर क्वेश्चन आया है तो प्लीज रीड द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट कि निकालने क्या बोला है, ताकि जब मैं क्वेश्चन पढ़ना चालू करूं सो आई नो दैट दीज आर द थिंग्स दैट आई नीड टू लुक फॉर व्हेन आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द आंसर. दिस इज व्हाट इज नीडेड, सो व्हाट डेटा विल बी यूजफुल, एंड यू नो इट स्टार्ट्स क्लिकिंग दैट ये लगेगा ये लगेगा. एंड बिकॉज ऑफ राइटिंग ऑल दीज थिंग्स इट इमीडिएटली स्ट्राइक्स कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है. बिकॉज आई नो कि अच्छा ये चीज है, ये तो इस फॉर्मूला में पढ़ा हुआ है. सो यू हैव टू अप्लाई अ लॉट ऑफ दीज ट्रिक्स and you have to be confident in the exam. And the most important problem क्या आपका सबसे problematic वाला एग्जाम होगा अकाउंट्स पेपर, क्योंकि पहला एग्जाम है, नर्वस हो एंड स्पीड बैठा नहीं है, प्रैक्टिस करने का हैबिट नहीं है, क्योंकि 2 महीना से पढ़ी रहे हो. That brings me to my next question that people ask me कि मॉक पेपर्स घर पे सॉल्व करना चाहिए नहीं सॉल्व करना चाहिए, पेपर्स प्रैक्टिस करके जाने चाहिए कि नहीं प्रैक्टिस करके जाने चाहिए. I have not practiced a single paper before going to the exam for my CA final. अनुपम दा बाहर का गेट बंद करिएगा.
So I don't practice as such. My objective, my way of studying, सबका अपना होता है. मैंने एकदम शुरू से क्लास 1 से भी मेरे को याद है. क्लास 1 I remember I used to study in the terrace, on the terrace, बाहर सुबह 6 o'clock. So the पढ़ाई has always been conceptual understanding things. I can never mug up. मैंने प्रैक्टिस करके पढ़ाई नहीं किया, मैंने कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से पढ़ाई किया है. तो एग्जाम के पहले भी मैं सम्स गो थ्रू नहीं करता, मतलब एग्जाम वाले दिन मैं सुबह सुबह उठ करके आई एम जस्ट गोइंग थ्रू माई कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स होगा तो वो कैसा भी सम दे दे मैं उसको अप्लाई करके आई विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस. सो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. दूसरा चीज, एग्जाम वाले दिन अगर इफ यू आर एवरीबडी साइंटिफिकली इज अ मॉर्निंग पर्सन, नोबडी इज अ नाइट पर्सन. सो इफ यू स्टार्ट गेटिंग अप एट 4 o'clock 5 o'clock इन द मॉर्निंग, इट विल बी वेरी हेल्पफुल. सोच के देखो मैं क्या बता रहा हूँ. आपका एग्जाम 2 o'clock to 5 o'clock है. 2 o'clock to 5 o'clock एग्जाम देके आने के बाद आप में कोई शक्ति नहीं है पढ़ाई करने का. 7 o'clock 8 o'clock you go off to sleep. You get up in the morning and next day at 4 o'clock 5 o'clock, let's keep it a little late, 5 o'clock or 6 o'clock, जिन लोगों को इतना ही प्रॉब्लम है सुबह उठने से. So then 6 o'clock से पूरा का पूरा दिन 6 बजे तक पढ़ रहे हो, और 6 बजे से 12-1 बजे तक कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता. There is no entertainment around you. Nobody is uploading anything on Facebook. Nobody is doing anything in the morning at 6 o'clock. Provided you're not a part of a family group where everybody is doing good morning. So other than that, I don't think you will have any kind of distraction in the morning. Advantage क्या बता रहा हूँ, अगले दिन एग्जाम है, एग्जाम वाले दिन 5 बजे उठ रहे हो, सुबह 5 बजे से अगर 2 बजे तक एग्जाम वाले दिन पढ़ते हो, सोच के देखो क्या लेवल ऑफ रिटेंशन होगा. 5 o'clock I start studying and 1-1:30 तक आई एम स्टडिंग पूरा. 2 बजे एग्जाम है, मैं तो 2 बजे तक पढ़ता था. अलग लोगों का अलग होता है कि एग्जाम के पहले 1 घंटा नहीं पढ़ेंगे, पैनिक हो जाता है एंड ऑल दैट. आई यूज्ड टू कीप ऑन गोइंग थ्रू फॉर्मूलाज और whatever I used to keep on flipping. मतलब एग्जाम के रूम के अंदर जाने के पहले बैग रखना होता, बैग रखने के टाइम पे बुक बैग में जाता था. Now it's up to you. You want to stop studying 1 hour before and all, that is up to you. That is not a problem. But the point over here is कि 5 o'clock to 1 o'clock भी अगर आप पढ़ रहे हो, you are studying for like 7-8 hours, 8 hours before the exam. Just imagine. और उस समय टाइम पास का कोई स्कोप ही नहीं है, डे ड्रीमिंग का स्कोप ही नहीं है. I know everything happens, डे ड्रीमिंग and everything starts increasing just before the exams. वो 8 घंटा का जो पढ़ाई करोगे सोच के देखो, एंड सब चीज पहले दिन पढ़ा हुआ है, उसी को रिवाइज कर रहे हो, स्पीड भी ज्यादा होगा, रिटेंशन सोच के देखिए कैसा होगा. एंड साइंटिफिकली नोबडी इज अ नाइट पर्सन. सो ये मत बोलेगा कि मेरे से सुबह पढ़ाई नहीं होता है. एंड यू कांट एक्सपेक्ट टू डू दिस ऑन द एग्जाम डे के दिन से. ये आपको हैबिट डालना पड़ेगा 1-2 महीना पहले से कि एग्जाम आने वाला है, धीरे धीरे अभी 8 o'clock उठ रहा हूँ, लेट मी मेक इट 7 o'clock नेक्स्ट वीक, लेट मी ब्रिंग इट टू 6:30, लेट मी ब्रिंग इट टू 6 o'clock. तो एक हफ्ता 1 घंटा आधा घंटा जल्दी लाते यू हैव टू पुल इट टू 5 o'clock or 4:30 or something. ट्रस्ट मी, इट विल बी अमेजिंग गोइंग फॉरवर्ड. एग्जाम के पहले का 8 घंटा, CS का एग्जाम के टाइम में कोई यही प्रॉब्लम था, बिकॉज एग्जाम यूज्ड टू बी एट 9 o'clock, बट CA इंटर फाइनल एवरीथिंग टुक प्लेस एट 2 o'clock. So it used to be like 8 hours of literally kick-ass studying just before the exam. So that used to work very much in my favor. Another thing with respect to exams, जो आप 1.5 days में रिवाइज करोगे वो आप एग्जाम में लिख पाओगे. बाकी का there is a very low probability जो आप रिवाइज नहीं कर पाए, 99% you will not be able to write that on the exam day. So right now what you are studying, revising, whatever you are doing, first time अभी जो अपना पढ़ाई कर रहे हो, मैं first time में करता था, जो लोग का first time में अगर नहीं बचा तो अब रिविजन के टाइम पे you have to make your notes or you have to do things in that manner कि एग्जाम के 1.5 दिन में आप पूरा का पूरा रिविजन कर पाओगे. That has to be your objective. Now how do you do that? There are let's say hundreds of sums in one chapter of accounts. अभी 8-10 चैप्टर है, उसमें 900, 1000, 1,500 सम कैसे रिवाइज करने का, या SFM में इतना सम्स है कैसे रिवाइज करने का, that will be your question. थियोरी में तो क्या करता था मैं, आई विल जस्ट गिव यू माई वॉट एवर आई हैव डन. थियोरी में सपोज आई एम स्टडिंग लॉ, पॉइंट फॉर्म में पूरा लॉ है, साइड में फ्लो चार्ट बना हुआ था. मेरे को GST का भी नहीं बता पाऊंगा बिकॉज मेरे टाइम पर GST नहीं था. आई यूज्ड टू हैव माई एक्साइज एंड कस्टम, उसमें वो इसको ये पकड़ा है, वो उसको ये किया, स्टेप वाइज होता था. तो मैं पूरा का पूरा फ्लो चार्ट मतलब बुक में ही पूरा मार्जिन में होता था. I would not waste my time making copies and copies of notes and everything because it's absolutely very time consuming. With 8 subject and this volume of syllabus, 2-4 चैप्टर का शौक में कर भी लोगे, उसके बाद में टाइम बचेगा नहीं करने का. For those who studying for 2 years or something, I don't have anything to say. मतलब वो किया होगा, it's good for you. मतलब I'm just saying मेरे पर्सपेक्टिव उससे. तो मेरा जितना भी थियोरी होता था वो साइड में पूरा का पूरा मार्जिन में ये सब बना हुआ रहता था. So that is how I used to, and एग्जाम के टाइम में रिवाइज होता था. सम्स वाले में क्या होता था कि व्हेन यू हैव कॉस्ट SFM और अकाउंट्स ऑल्सो, व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज
व्हाट मेक्स इट इजी, अकाउंट्स का जैसे सम्स देखोगे तो सारे सम 100% डिफरेंट नहीं होता था, 90% ऑफ द सम इज सेम, उसमें से 4 एंट्री है, उसमें से ये वाला एंट्री नया है, एक एक कुछ नया नया पॉइंट आता था हर एक सम में, तो उसको सर्कल करके उसका साइड में ट्रीटमेंट लिख के रखता था यहाँ पर। एसएफएम का भी देयर आर 20 सम्स में हर एक सम में एक नया कैच है, लाइक ये वाला सम है, इसमें आपको केई निकालना पड़ेगा इंटरपोलेशन से, सपोज केई इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू श्रीधर आचार्य कैलकुलेट केई, बाकी सम बेकार है, बंडल है, तो इसके साइड में यही होता केई कैलकुलेट यूजिंग श्रीधर। अब ऐसे करके अगर मेरे को 100 सम्स रिवाइज करना पड़े 1.5 घंटे में हो जाएगा एक एक चैप्टर का रिविजन। आई बी एबल टू रिवाइज एवरी सिंगल सम, ऑल द टेक्निक्स आर रिटन, इस सम के लिए ये टेक्निक है, इस सम के लिए ये टेक्निक है, सो उसको साइड में, या ये सम में पूरा बड़ा सारा सम है, उसमें खाली ये वाला कैच पॉइंट है, यहाँ पे ये अजम्पशन लिया हुआ है, यहाँ पे वो अजम्पशन लिया हुआ है, प्रेफरेंस का ट्रीटमेंट ऐसे करना पड़ेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड इंक्लूडेड इन दिस फॉर्मूला। अभी कई इंटर का कोई फॉर्मूला, लेवरेज एसेट बाय डेट, वो यूज करना पड़ता है, एसेट बाय इक्विटी का फॉर्मूला, ड्यू पॉइंट को यूज करके एक सम किया हुआ है कि ड्यू पॉइंट को यूज करके आरओई निकालना पड़ता है, यूज ड्यू पॉइंट टू कैलकुलेट आरओई। अब वो अगर मेरे को याद नहीं आएगा तो मेरे को सम के अंदर घुस के देखना पड़ेगा, अगर मेरे को याद आ गया हाँ ड्यू पॉइंट तो मेरे को पता है, नेट इनकम बाय सेल्स इनटू सेल्स बाय एसेट इनटू एसेट बाय इक्विटी, सो आई नो आई बी एबल टू डू दिस सम, बाकी सम तो बेकार है। हाँ श्रीधर का अब तो फॉर्मूला देखना पड़ेगा, मेरे को श्रीधर याद नहीं, अगर याद है श्रीधर सम रिवाइज हो गया विद इन 10 सेकेंड्स, यूज श्रीधर टू कैलकुलेट केस, 10 seconds ओवर नेक्स्ट सम। आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ द रिविजन इज गोइंग टू प्रोसीड दिस वे? समझ में आ रहा है? तो सम्स का अगर आप लोगों ने पहले से करके रखोगे तो इट विल बी वेरी इजी। आई पैनिक्ड अ लॉट इन माय टैक्स का पेपर, डीटी आई रिमेंबर, डीटी का मेरा जो मैथ था, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी नेम्स और एनीथिंग, मेरा जो मैथ था उसमें इंडेक्स 5 पेज का था, और कैपिटल गेन्स का जो बुक था, पीजीबीपी का जो बुक था, एंड एक और था वो जिसमें चैरिटेबल ट्रस्ट वाला चैप्टर था, उसका जो बुक था, उसका मैंने वो 5 पेज में इतना सब लिख के रखा था कि वो 5 पेज पढ़ने में आपको 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा, बट उससे पूरा सीजी कंप्लीट हो जाएगा। अमेंडमेंट मैथ पढ़ूंगा तो अमेंडमेंट मॉड्यूल वाज, एंड एक और चीज अगेन दैट ब्रिंग्स मी टू दैट पार्ट दैट एवरीबडी इज गॉट अ वेरी वेरी फोटोग्राफिक काइंड ऑफ अ मेमोरी। अरे लेफ्ट साइड में ऊपर में लिखा हुआ था, याद नहीं आ रहा एग्जाम के टाइम में, सो डोंट स्टडी वन थिंग फ्रॉम 10 प्लेसेस। मैंने हमेशा एक चीज को एक ही जगह से पढ़ा है, सो अब वो अमेंडमेंट मॉड्यूल पढ़ना इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी बिकॉज आई गेट कंफ्यूज, ये तो यहाँ पढ़ा था कि वहां पढ़ा था, तो मैंने अपने हिसाब से अपने टैक्स के मैथ में पूरा सब कुछ खिचड़ी करके रखा था, एंड उसका इंडेक्स पेज को पढ़ करके मैं बच गया बिकॉज आई वॉज एबल टू रिवाइज ऑल दैट इन वन गो। So it is very important that how you are going to make your content so that you are able to revise. I don't want you to make flowcharts and copies and everything. बुक के अंदर में ही डालने का, बिकॉज उससे याद बहुत जल्दी होता है, एंड रिटेंशन बिकॉज वेन्स यू आर राइटिंग अब यू आर स्पेंडिंग दैट 30 seconds on writing 2 lines, so continuously in your brain that line is going for 30 seconds, so retention becomes better. So the most important thing over here is कि 1.5 दिन में कैसे रिवाइज करने का. So whatever you'll revise in 1.5 days is what you'll be able to produce in the exam. So remember that. Goes for CA Inter, goes for CA Final as well. उसके बाद में एक और चीज होता है पैनिक करने का, कि बड़ा बड़ा सम देखेंगे 3 पेज 4 पेज का सम आ गया, पैनिक करने लगते हैं. एक क्वेश्चन, एक केस स्टडी है रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज योर इलेक्टिव इन सीए फाइनल. एक केस स्टडी 8 पेज का केस स्टडी है, उसमें 6.5 पेज का खाली बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट दिया है. एंड उसका क्वेश्चन क्या था 30 मार्क का, कि आपको रेशियोज निकालने हैं और रेशियो का एनालिसिस करना है. हाउ इजी इज दैट, थिंक. एंड लुकिंग एट 6 पेज सम, यू विल पैनिक. Always read the last line of the question first. What is the requirement from the question? Don't bother about the data that is given. और कई बार redundant data भी देता है. दूसरा चीज, एक और चीज के लिए प्रिपेयर हो जाइए कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है एग्जाम के पेपर में, because we've seen the amount of irregularities that we have seen over the past few years. So you get prepared कि हाँ ऐसा पॉसिबल है कि सम डुएबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल है कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऐसा पॉसिबल है कि मेरे को शायद कुछ अजम्पशन लेना पड़े. कई जगह ये लोग बोलते हैं, मतलब कई जगह ऐसा भी 1-2 सम्स है इंस्टीट्यूट के मैथ में सोल्यूशन जिसका कि आप अजम्पशन लेकर के आपको करना पड़ जाएगा. अज्यूमिंग इंटरेस्ट रेट इज 8% देन डू द होल सम. और रबिश, बट अब है तो है, अब कोई उपाय नहीं है. तो ये चीज को ध्यान में रखिए. इफ देयर इज अ 6 मार्क क्वेश्चन ऑन समथिंग कि एक्सप्लेन आईआरआर और समथिंग, आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ आइडिया, तो आपको समझना पड़ेगा कि 6 मार्क का अगर एक्सप्लेन आईआरआर बोला है, एक्सप्लेन ये बोला है, तो मेरे को एक एग्जाम्पल लेकर के समझाना पड़ेगा. अप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, फॉरेक्स का कोई क्वेश्चन हुआ, क्योंकि इंस्टीट्यूट मैथ में ऐसे एक आधे क्वेश्चन है जहां पर अपने मन से सोच करके थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है. सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ मार्क्स योर क्वेश्चन इज कैरिंग, यू हैव टू डू दैट. प्लीज डू नॉट लूज योर कूल, लूज योर मेंटल फ्रेम लुकिंग एट अ क्वेश्चन विच हैज गॉट सम प्रॉब्लम. मान के चलो कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, एक से ज्यादा एक क्वेश्चन में मत एक्सपेक्ट करने का. मतलब ये मत समझना कि पूरा ही पेपर में प्रिंटिंग मिस्टेक है, पूरा ही पेपर में assumptions है, उतना मत दिमाग लगा लेना.
but that is going to be a problem, so understand that. Another question I get, इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन एक जगह कुछ है, एक सेम टाइप का सम के लिए दूसरा जगह कुछ है, एक जगह अजम्पशन ये लिया, एक जगह अजम्पशन ये लिया, एक जगह अजम्पशन पर मंथ कंपाउंडिंग लिया, एक जगह अजम्पशन एनुअल कंपाउंडिंग लिया है. These problems we have faced even when we are doing SFM. You stick to one method because you cannot mug up कि ये वाला क्वेश्चन में पर मंथ अज्यूम करना है, ये मंथ में ये क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट अज्यूम करना है, ये क्वेश्चन में कंपाउंडिंग अज्यूम करना है. लाइक द ट्रिक्स आई हैव टोल्ड यू कि अगर कहीं 90 डे दिया है तो 90/360 करके कर सकते हो कहीं शायद. अगर 91 डे दिया है तो प्लीज 365 में ही चले जाओ. और जहां पर आपको जो भी रेट दिया हुआ है, इफ दे हैव नॉट मेंशन्ड कंपाउंडिंग वाला फ्रीक्वेंसी तो प्लीज यूज एनुअल कंपाउंडिंग ओनली. मतलब अगर 6 मंथ्स का अमाउंट निकालना है, 8% पर एनम है, 6 मंथ्स के बाद कितना होगा, 1.08 टू द पावर हाफ. हाँ, अगर आपको मिल गया निकालने का कि 1 मंथ में क्या होगा, तो 1.08 टू द पावर 112 होना चाहिए. अब आप अज्यूम करेंगे मंथली कंपाउंडिंग. अब बुक का सोल्यूशन में कहीं मंथली कंपाउंडिंग अज्यूम्ड है, कहीं ऐसा नहीं अज्यूम्ड है. टाइम है तो मंथली कंपाउंडिंग अज्यूम मत करो, डर्टी पावर करके एकदम करेक्ट सम करो. टाइम नहीं है तो अजम्पशन लिख दो, अज्यूमिंग मंथली कंपाउंडिंग करके सम वैसे कर डालो, इंस्टेड ऑफ नॉट डूइंग द सम, बिकॉज राउंडिंग ऑफ एरर तो हल्का सा ही होगा ना. अगर टाइम नहीं है मेरा सम करने का, इंस्टेड ऑफ नॉट डूइंग द सम और लीविंग द सम हाफ फिनिश्ड, आई वुड रादर अज्यूमिंग मंथली कंपाउंडिंग. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यू हैव टू बी स्मार्ट इन दीज काइंड ऑफ प्लेसेस. You put an assumption like that and do the sum. Again, coming back to my question, कि if the solution of your institute is in one way in one place and same sum का दूसरा अलग assumption करके किया हुआ है, you will have to stick to one assumption. अगर कहीं इंस्टीट्यूट का सम गलत करके दिया है, सोल्यूशन आपके हिसाब से गलत है, क्लास में मैंने बोला कि ये सोल्यूशन गलत है एंड मैंने सही सोल्यूशन कराया है, आई विल पर्सनली ऑलवेज गिव द राइट सोल्यूशन इन द एग्जाम. क्यों? क्योंकि 100 सम है, 2 सम का गलत सोल्यूशन याद करके जाऊंगा, जो सही क्वेश्चन आएगा जिसका सही सोल्यूशन दिया हुआ है उसको भी गलत करके आ जाऊंगा. एंड डोंट यू थिंक इट इज पॉसिबल दैट व्हेन क्वेश्चन ऑफ दैट सॉर्ट कम्स इन द एग्जाम, द इंस्टीट्यूट विल इवैल्यूएट, द इंस्टीट्यूट विल गेट मेल्स और रिकमेंडेशंस कि इसका करेक्ट सोल्यूशन ये भी करना पड़ेगा आपको इवैल्यूएट. तो रॉन्ग और राइट दोनों कंसिडर करेगा वो फिर. और मैं गलत चीज याद करके जो सही होता होगा वो 98 को रॉन्ग कर दूंगा 2 गलत के कारण. आई विल नॉट डू दैट. मैं ना तो सिखाऊंगा, ना बोलूंगा, ना रेकमेंड करूंगा. So even if the institute solution has been wrong in some place, I would recommend you to learn the right place, right things only. नंबर घुमा करके दे दिया, वही उसी टाइप का क्वेश्चन आप गलत करके आ गए इंस्टीट्यूट के भरोसे, तो कैसे चलेगा बताओ? Does not make sense, right? So this is my logical. हाँ, it is possible कि एग्जाम में आपको उसके लिए 0 मिलेगा, तो वो 4 मार्क या 6 मार्क का क्वेश्चन में I would rather take a 0 instead of risking my other 94 marks. गलत सीख के जाऊंगा, बाकी 94 में गलती करूंगा. आउट ऑफ 100 राइट क्वेश्चंस में एक रॉन्ग सोल्यूशन के कारण उसको गलत याद किया और वो 99 में से एक भी क्वेश्चन आएगा उसमें गलती कर दिया, तो डोंट यू थिंक दैट इज मोर स्टूपिड? तो अगर वो एक गलत सोल्यूशन है, वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, आई विल डू द राइट सोल्यूशन एंड नॉट गेट एनी सिंगल मार्क ऑन दैट, बिकॉज बाकी 99 क्वेश्चन जब आएंगे जो करेक्ट सोल्यूशन डिमांड करेंगे तो मैं करेक्ट हूं. सो दिस क्वेश्चन ऑल्सो आई गेट अ लॉट ऑफ टाइम्स कि अगर रॉन्ग सोल्यूशन है तो क्या होगा. ये क्या लिखा है खुद ही नहीं समझ में आया. हाँ, दूसरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में 2-4 लाइन एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ के आगे बढ़ने का. अगर क्वेश्चन आधा अधूरा हो गया एंड यू आर गेटिंग स्टक, यू कैन नॉट सिट विद दैट क्वेश्चन फॉर हाफ एन आवर और समथिंग. मतलब अगर दिख रहा है कि मैंने 2-3 मिनट दे दिया, मेरे को स्ट्राइक नहीं कर रहा है, प्लीज आगे बढ़ जाइए. हाँ, अगर उसमें सपोज मेरा सोल्यूशन इज आस्किंग मी a + b + c + d, आपने A निकाल लिया, B निकाल लिया, C निकाल लिया, D नहीं निकल रहा है, तो एटलीस्ट इतना आंसर लिख लीजिए ताकि व्हेन यू गेट बैक टू दिस क्वेश्चन, वंस योर पेपर इज ओवर एंड देन यू हैव टाइम एंड यू वांट टू रीवैल्यूएट दिस क्वेश्चन, एटलीस्ट ABC कैलकुलेट नहीं करना पड़े. अरे मतलब 3 चीज कैलकुलेट कर लिया, चौथा चीज कैलकुलेट करने के कारण सम नहीं कंप्लीट हो रहा है मेरा, तो 3 चीज को लिख करके आगे बढ़ जाओ. पार्ट मार्किंग का सम्स है. डोंट गेट स्टक. एक क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व हो रहा है, ईगो इशू हटाना पड़ेगा. कॉन्शियसली एग्जाम के पहले सोच के जाना पड़ेगा कि मेरा ईगो नहीं है, अगर मेरे से एक सम नहीं हुआ तो आई विल नॉट गेट आफ्टर इट, आई विल लीव दैट सम, आई विल कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द पेपर, देन टाइम मिलेगा तो आई विल गेट बैक टू द पेपर. बिकॉज आई सीन नहीं, हम तो इसमें 15 मिनट दे दिया, हमको तो ये आता ही है, तो मेरा किया हुआ ही हम तो करके ही मानेगा, वो नहीं करने का. बिकॉज अल्टीमेटली यू नीड टू गेट द एंटायर पेपर का मार्क्स. एक सम में कुछ उखाड़ नहीं लोगे एक सम में अपने आप को प्रूव करके. सो प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक ऑल्सो पीपल मेक. यू हैव टू डू थियरी मतलब एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए मैंडेटरी नहीं बोल रहा हूं, बट पढ़ के जाना पड़ेगा. स्पेशली बिकॉज अर्लियर का एसएफएम का अगर फॉर्मेट बताऊंगा तो एसएफएम का फॉर्मेट क्या होता था, लास्ट क्वेश्चन यूज्ड टू हैव योर थियरी,
वेर आउट ऑफ 5 थिंग्स यू हैड टू राइट 4 चीज के ऊपर में शॉर्ट नोट्स, 4 into 4 16 मार्क्स का। अभी क्या किया, हर एक क्वेश्चन का पार्ट सी पार्ट डी में एक एक थियरी 4 मार्क 3 मार्क 2 मार्क 5 मार्क करके घुसा दिया है, 8 मार्क का भी घुसाया है। सो थियोरी लीव करना इज नो चांस फॉर एसएफएम। एंड इवन कॉस्ट में आई हैव सीन, मेरे टाइम में तो एटलीस्ट कॉस्ट में बीच में क्वेश्चंस में ही थियोरी होता था, कॉस्ट में अलग से कभी थियोरी क्वेश्चन आता ही नहीं था। सो यू कैन नॉट लीव थियोरी, अंडरस्टैंड दैट। सिलेक्टिव स्टडिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। एक तो ऐसे ही इतना सिलेबस है, ऊपर से मेरे को समझ में नहीं आता एग्जाम में क्या, कहीं से भी कुछ भी उठा के दे देगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता हूँ, 2013 में पेपर यू विल सी होल्डिंग कंपनी का जो सम था वो इंटरनेशनल वाला, वो क्रॉस बॉर्डर वाला था, वो एक सम पूरा होल्डिंग में छोड़ के गया था, होल्डिंग नहीं छोड़ के गया था, वो एक सम खाली कि यार इंटरनेशनल का चांसेस कम है, अभी माथा नहीं लग रहा है। रिवीजन के टाइम में, पढ़ाई के टाइम में किया था, रिवीजन के टाइम में वो एक सम छोड़ के गया था, वही सम आया एग्जाम में। May 13 पेपर यू कैन चेक होल्डिंग का क्या सम था, आई एम नॉट मेकिंग इट अप। वन, सिलेक्टिव स्टडिंग इज नॉट गोना हेल्प। थैंकफुली उस पेपर में 16 मार्क का अमैल्गमेशन इजी क्वेश्चन था, बहुत ही बच्चा क्वेश्चन था, तो मेरा अकाउंट्स बच गया। सो सिलेक्टिव स्टडिंग इज नॉट गोना हेल्प। हाँ, सिलेक्टिव स्टडिंग करोगे तो कॉन्शियसली सोच करके जाना, ये आएगा, मेरे नंबर जाएंगे, तो मैं पैनिक नहीं करूंगा। आई डिड सिलेक्टिव स्टडिंग इन टैक्स, आई हेट टैक्सेशन। सब्जेक्ट इज गुड, करियर इज गुड, सब चीज अच्छा है, मेरे को बहुत इरिटेशन है उससे। और उसमें वो पेनल्टी का एक वो आया था नया, कुछ अमेंडमेंट आया था उस साल में, 271 A और समथिंग, सम रैंडम सेक्शन। वो आई वॉज लाइक कि ये आ जाए उस बुक से, वो पूरा बुक छोड़ के गया था, खाली एक अमेंडमेंट करके गया था और एक ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर करके गया था। And then that turned up in the exam, so I was like pretty much okay. Another thing, I had not done the case studies IDT के पेपर में। एग्जाम के जस्ट पहले जो 1 घंटा, वो 1 से 2 वाला टाइम है, 12 से 2 वाला टाइम है, वो 1.5 घंटे में 12 से 1:30 आई रिमेंबर आई हैड डन ऑल द केस स्टडीज। एंड मेरे पेपर में 2013 IDT पेपर 2 क्वेश्चंस ऑन केस स्टडीज वाज देयर, 32 मार्क्स केस स्टडी वाज देयर। अगर वो 12 से 1.5 नहीं करता तो आई वुड नॉट हैव क्लियर्ड माय एग्जाम। सो एग्जाम के जस्ट पहले, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट एग्जाम के पहले का वो 8-9 घंटा इज वेरी यूजफुल, और वो 1.5 घंटा पढ़ते ही तुरंत जाकर के उगल दिया एग्जाम में। सो इट जस्ट वर्कड आउट प्रीटी वेल। सिलेक्टिव स्टडिंग नॉट गोना हेल्प, एंड प्लीज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। 32 मार्क्स कभी नहीं आता केस स्टडी, आ गया ना, 32 मार्क्स कभी नहीं आता केस स्टडी में, इट्स ओनली अ 16 मार्क क्वेश्चन दैट टर्न्स अप। यू हैव टू बी, अगेन एक और चीज आऊंगा उस पर थोड़ा डिटेल्स में, थोड़ा नेगेटिव बात बोलूंगा, IQ एंड EQ दोनों चीज बहुत जरूरी है। इंटेलिजेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, एंड इस एग्जाम में इंटेलिजेंस प्लस अ लॉट ऑफ हार्डवर्क इज नीडेड। अब इंटेलिजेंस कम होंगे चलेगा, हार्डवर्क, परसिवियरेंस, डिसिप्लिन इज व्हाट इज नीडेड। वो भी रिविजन कैसे करना है बताऊंगा, तब ये सब चीज भी डिस्कस करूंगा। बहुत छोटा चीज बोल रहा हूँ, बहुत एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस नॉट इन टर्म्स ऑफ ईयर्स बट एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आई हैव इंटरेक्टेड, बिकॉज आई पर्सनली इंटरेक्ट विद एवरीबडी। बहुत डिस्कशंस होता है तुम लोगों के साथ इतना टाइम बैठ करके। क्या बोल रहा था, व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट आई टोल्ड यू? रिविजन का तो मैं आ रहा हूं, उसके पहले कुछ और बता रहा था। अरे, सिलेक्टिव स्टडिंग इज नॉट गोना वर्क, दैट आई हैव टोल्ड यू। दूसरा चीज, यू हैव टू स्टडी बिफोर द एग्जाम, बता दिया उस दिन का 8 आवर्स। हाँ, दूसरा चीज व्हाट यू कैन डू इज फॉर्मूला शीट्स, मिस्टेक्स का शीट, अपना शीट बना के रखिए, एग्जाम वाले दिन बहुत काम में आता है। Formula sheet, why? Because flipping through becomes easier. Now what I used to do, another thing that I'll tell you is, मैंने जब अपना पढ़ाई किया था तो उसमें क्या करता था, कॉन्सेप्ट्स को ब्लू कलर में लिखता था सपोज, एंड सारे सम्स ब्लैक में सॉल्व होते थे। अब उससे क्या होता था, एग्जाम के टाइम में आई डोंट सिट डाउन एंड रिवाइज ऑल द सम्स, मैं खाली कॉन्सेप्ट ब्लू वाला पार्ट रिवाइज कर लिया, एंड सम्स तो मेरे क्वेश्चन जो सम्स का बुक होता है, बीट अकाउंट्स, बीट SFM, बीट कॉस्ट, उसमें तो मैंने सारा ट्रीटमेंट लिख के रखा है ना। और जब लिखता हूं वो ट्रीटमेंट लिख रहा था, इट्स नॉट दैट आई एम स्पेंडिंग और वेस्टिंग टाइम इन मेकिंग नोट्स। मेरा नोट्स इज लाइक व्हाट, स्क्रिबलिंग इन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, मतलब क्वेश्चंस इटसेल्फ। सो उस समय कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कॉपी से, एंड उसके बाद में सारा सम्स तो मेरा ऐसे रिवाइज हो गया। जो सम नहीं होता था उसको हैड टू रेफर बैक टू द कॉपी, कि ये वाला सम खाली ट्रीटमेंट देख के नहीं समझ में आया, कि ट्रीटमेंट जो मैंने शॉर्ट में लिखा है कि इसको ऐसे ट्रीट करने का, इसको ऐसे ट्रीट करने का, तो मैं खाली टेक्निक्स गो थ्रू कर रहा हूँ एग्जाम के पहले। सो दैट अगेन हेल्प्स। सो वन इज फॉर्मूला शीट अपने हैंड राइटिंग में होना इज ऑलवेज वेरी एडवाइजेबल, इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड फॉर्मूला शीट्स, नो मैटर वेयर फ्रॉम वेयर और वट एवर यू गेट। एंड मिस्टेक्स का शीट क्या होता था, आई यूज्ड टू राइट इट डाउन कि ये गलती मत करना, वो जो मैं देख रहा हूँ कि ये गलती मैं बार बार कर रहा हूँ, सो आई हैड अ शीट। एंड इट्स नॉट कि आप एक दिन बैठ करके फॉर्मूला शीट बनाओगे, आप जब पढ़ रहे हो तो पैरेलली जैसे ही फॉर्मूला है तुरंत उसमें यू राइट इट डाउन, बिकॉज वो फॉर्मूला के ऊपर नीचे भी थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ एरो दे के लिख सकते हो तब। एंड द मोमेंट आई कम टू, आई मेक अ मिस्टेक अ सेकेंड टाइम, आई राइट इट डाउन इन अ शीट ऑफ पेपर,
सो जब भी मिस्टेक हो रहा है आप उसको लिख रहे हो, अलग से कोई एफर्ट नहीं है। उससे क्या होगा, एग्जाम के पहले दिन आई यूज्ड टू ऑलवेज गो थ्रू दैट शीट, ये गलती नहीं करना, ये गलती नहीं करना, ये गलती नहीं करना, ये गलती नहीं करना। माई सिली मिस्टेक जो मेरे को आता है, जो मेरे को पता है कि आई एम मेकिंग दीज एरर्स रेगुलरली, दैट गोज डाउन। So while revising also, if you can, you just need to put a middle sheet in your textbooks, every subject. एक middle sheet formula का, एक middle sheet mistakes का, जब भी encounter किया लिख दिया, अलग से टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है, retention will improve. अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी अटेम्प्टेड पार्शियली, कॉमन सेंस लगाओ, इंग्लिश पढ़ो, कुछ तो किए हो, कुछ तो लिख करके आने का, खाली नहीं छोड़ने का। मतलब 95 के नीचे तो अटेम्प्ट होना ही नहीं चाहिए कोई भी पेपर का, एटलीस्ट 97, 98 यू गोना अटेम्प्ट। डोंट बॉदर अबाउट, अच्छा EQ एंड IQ वाला पार्ट बता रहा था। अलॉन्ग विद IQ यू नीड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग EQ, इमोशनल क्वोशिएंट। आपको सुनने में खराब लगेगा बट अंडरस्टैंड, आउट ऑफ 100 पीपल गिविंग द एग्जाम 20 आर पासिंग, अज्यूमिंग अ 20% पास रेट, अज्यूमिंग अ 10% पास रेट, यू नो दिस इज अ फैक्ट, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं। 90 पीपल विल नॉट क्लियर द एग्जाम, 10 पीपल विल क्लियर द एग्जाम। अभी होता है कि मेरा 10-12 इतना अच्छा था, मेरा स्कूल लेवल तक आज तक फेल नहीं हुआ, अभी अचानक से फेल हो गया मैं। एंड स्पेशली दिस पॉइंट इज फॉर दोज हु आर गिविंग द एग्जाम फॉर द सेकंड टाइम। हम कैसे फेल हो सकता है, आई हैव नेवर फेल्ड इन माई लाइफ, हाउ विल आई टेक दिस? I am not mocking you, absolutely not. I have also seen failures, may not be in exams but in a lot of other places I have seen setbacks. Understand, स्कूल में 50% स्टूडेंट्स एक क्लास में होगा तो 50 पास करेगा, गलती से 49 पास करेगा एक अगर नहीं क्लियर किया तो। स्कूल में एवरीबडी पासेस, यहाँ आउट ऑफ 100 पीपल 90 विल नॉट पास एंड 10 विल पास। यू हैव टू वर्क हार्ड दैट यू आर इन द टॉप 10। आर यू अंडरस्टैंडिंग द आइडिया? और प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा इस चीज के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्लान भी बनाओ, बैकअप प्लान रखो, नहीं होगा तो नहीं होगा, लाइटली ले लो, जी जान लगा दो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाने का, ताकि दोबारा 6 महीना घर पे बैठने का जरूरत नहीं पड़े। बिकॉज दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग टाइम्स ऑफ माई लाइफ एंड आई हैड टू सिट बैक होम फॉर 4-5 months एंड एब्सोल्युटली जस्ट स्टडी एंड नॉट गेट आउट ऑफ माई रूम ऑल्सो। आई यूज्ड टू बी फीलिंग लाइक जेल में डाल दिया मेरे को। दैट वाज द फीलिंग यू गेट, दैट इज नॉर्मल। रिटेंशन आज पढ़े, एक हफ्ता बाद भूल गए, दैट इज नॉर्मल। क्यों? 8 सब्जेक्ट भरोगे तो कहां से याद रहेगा? बट यू आर स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, फिर आप रिविजन कर रहे हो लास्ट 1.5-2 months जो भी आपके पास है। आई वॉज लेफ्ट विद अराउंड 25 days टू रिवाइज, मेरे पास 1 महीना भी नहीं था। एंड उसके बाद में एग्जाम के पहले जो 1.5 दिन रिवाइज किया, तीसरी बार आई एम स्टडिंग द सेम थिंग एंड उस समय आई एम नॉट स्टडिंग एवरीथिंग। लास्ट में रिविजन के बाद में 1.5 days में आई जस्ट हैव वन पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन टू रिमेंबर, गिव इट आउट इन द एग्जाम एंड देन फॉरगेट अबाउट इट फॉर एटलीस्ट सम टाइम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो रिटेंशन सबका खराब होता है। हाँ, अब आपने पढ़ाई बहुत बेकार तरीके से किया, उसके कारण आपका रिटेंशन खराब है, तो दिस विल नॉट हेल्प। बट इवन इफ यू स्टडीड वेल एंड यू आर फीलिंग लाइक, तुम बोल रहे हैं कि रिटेंशन नहीं हो रहा है, याद नहीं है, मैंने पढ़ा अच्छे से था, दैट इज ओके, डोंट वरी अबाउट इट। मैंने भी अपने सीनियर से पूछा था, दे वर लाइक कि नहीं भाई रिटेंशन नहीं होता है, इट्स नॉर्मल, डोंट वरी अबाउट इट। तो एक पता है, व्हेन यू नो दैट दिस इज गोइंग टू हैपन, इट्स ईजियर टू मैनेज एंड मूव फॉरवर्ड। पढ़ते टाइम पे ही बीच बीच में अगर आपको 10 बार नहीं यार ये तो 5 दिन पहले पढ़ा था, अभी कैसे याद नहीं, मैं वापस से वो पढ़ने बैठ जाऊंगा, नहीं चलेगा। इट्स नॉट गोना हेल्प। आई एम ऑल्सो मूविंग टू हाउ टू रिवाइज पार्ट नाउ, सो दैट इज नॉट गोना हेल्प। एग्जाम के टाइम पे आपको 1 महीना रिविजन तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, वरना 8 सब्जेक्ट कैसे करोगे? हाउ डू यू मैनेज? लाइक 3.5 days you're getting, even if you're taking 1 month to revise at the end. So you need that 1 month, 1.5 months to revise. टारगेट करो 1.5 months का, तो घूम फिर करके 1 month बचेगा रिवाइज करने के टाइम पे। मेरा रिविजन, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। आई रिमेंबर माई एग्जाम, आई रिमेंबर एग्जैक्टली एक्यूरेटली हाउ इट वाज गोइंग। मेरा 1 month नहीं बचा, 1 month के टाइम पर सिलेबस खत्म नहीं हुआ था। मैंने 1 month के पहले रिविजन चालू कर दिया, और जो नया सब्जेक्ट, मतलब जो अनडन पोर्शन था, उसको दिन में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा करके स्प्रेड अक्रॉस किया इन द नेक्स्ट 15-20 days। कि आई नो मेरा 5 चैप्टर बाकी है, मैं आधा चैप्टर करके 10 days में करूंगा एंड बाकी रिमाइंडर टाइम पे रिविजन करूंगा। स्ट्रेस, उससे ना स्ट्रेस कम हो जाता है। क्यों? बिकॉज यू हैव अ टारगेट दैट आई विल बी कंप्लीटिंग इन 10 days बिकॉज देयर आर ओनली 5 chapters लेफ्ट एंड ऑल्सो योर रिविजन स्टार्ट्स। एंड दूसरा, यू नॉट स्ट्रेसिंग आउट, न्यू चैप्टर को पढ़ने में ज्यादा स्ट्रेस होगा, पुराना रिवाइज करने में दिमाग कम लगाना पड़ेगा बिकॉज यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट वेरी वेल। सो पैनिक लेवल भी कम रहेगा, रिविजन भी होगा, क्योंकि रिविजन तो करना ही पड़ेगा, बिना रिविजन के तो होना ही नहीं है। आई रिमेंबर आई वॉज नॉट एबल टू गो थ्रू दी RTPs बिफोर माई एग्जाम, मतलब द रिविजन टाइम में। तो जिस दिन मैं एग्जाम दे के आता था, लाइक आई गिव माई अकाउंट्स पेपर टुडे, आई एम बैक होम, आई विल गो थ्रू दी RTP दैट डे। RTP में समझ के समझ में आ जाता है कि यार सब किया हुआ है, क्योंकि आधे कॉमन ही रहते थे, नए वाले सर्कल कर लेता था, नेक्स्ट डे फिर अपना रिविजन चालू करता था। पूरा रिविजन कंप्लीट होने के बाद एंड ऑफ द डे क्वेश्चन ब्राउज थ्रू कर लिया।
अच्छा ये क्वेश्चन छूटा हुआ है, ये देख लिया. सो एंड ऑफ द डे आई यूज टू डू आरटीपी. और ऑल्सो व्हाट यू कैन डू इज आरटीपी इज ऑलवेज सब्जेक्ट वाइज. ये एक और एडवांटेज होता है बिकॉज आई हैव सीन पीपल सिलेबस खत्म करेंगे, फिर एक दिन बैठ करके आरटीपी करेंगे, फिर एक दिन बैठ करके मॉक टेस्ट पेपर करेंगे. वेरी बैड आइडिया पर्सनली. क्योंकि क्या होता है, मैंने सपोज एक चैप्टर कंप्लीट किया, दैट वेरी मोमेंट अगर मैं आरटीपी का वही वाला चैप्टर का 2 क्वेश्चन देखता हूं तो उसमें मेरे को दिखेगा कि दोनों का दोनों कॉमन है. आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस इन आरटीपी 3 आर न्यू. तो वो 3 पे टाइम देना पड़ेगा ना. बट अगर आप सारा पेपर एक साथ कर रहे हैं, फिर सारा आरटीपी एक साथ कर रहे हैं, आपको सारा क्वेश्चन वापस देखना पड़ता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड, यू हैव टू डू दीज थिंग्स. मॉक पेपर सपोज हुआ तो पूरा रिवीजन खत्म हुआ, उसके बाद मॉक पेपर फ्लिप थ्रू कर लिया जल्दी से. या 1-2 दिन अगर टाइम जब इरिटेशन होता था, मैं ये भी करता हूँ, अभी भी करता हूँ. इनफैक्ट आप लोग का मटेरियल में बनाने के लिए जो भी काम करना होता है, तो मॉक गो थ्रू करना है. मॉक के साइड में चैप्टर्स का नाम लिखता था, फिर जब वो चैप्टर पढ़ता था तो मॉक के खाली वो क्वेश्चंस रेफर कर लिया. एंड मोस्ट ऑफन यू विल फाइंड दैट दोस क्वेश्चंस आर आल्सो मोर और लेस कॉमन. एंड इसमें ग्रुप स्टडी का दिमाग लगाओ. मैं ये सब्जेक्ट का मॉक मार्क कर रहा हूँ, तो ये सब्जेक्ट का मॉक मार्क करेगा विच इज न्यू. 8 जन अगर हो तो एक जन को तो एक ही सब्जेक्ट का मॉक का नया क्वेश्चन मार्क करना पड़ा. इसका आई रिमेंबर वैसे ही पढ़ाई किया था. फ्रेंड्स लोग 10 चैप्टर 10 जन बांट लिए, सब एक दूसरे का मार्किंग कर लिए, फिर अपना एक दूसरे का मार्किंग सर्कुलेट कर लिए. वी पुट ऑल द पीएम मॉक आरटीपी वॉट एवर वॉज इन द इंस्टीमैट ओनली. सो इट बिकेम क्वाइट ईजी. ग्रुप स्टडी डज नॉट मीन कि ग्रुप में बैठ करके स्टडी करना, वो कभी होता नहीं है. ग्रुप स्टडी मतलब कोऑर्डिनेटेड स्टडी. कोऑर्डिनेटेड मतलब तुम ये मार्क कर, तुम ये मार्क कर, लास्ट रात को आधा घंटा फोन पे एक दूसरे का मार्किंग करवा देंगे. ग्रुप ये देयर शुड बी समवन यू आर स्टडीइंग विद, इज वेरी हेल्पफुल. तेरा इतना हो गया, मेरा नहीं हो, फोन रख जाके पढ़ना पड़ेगा. इट हेल्प्स, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पुश. So please don't isolate yourself because you will actually get into a very bad phase. Don't isolate yourself. Have 1 or 2 people you are studying with. 1 person is also sufficient. मेरा तो क्लास 9 से लेकर के पूरा CA फाइनल तक एक ही जन था जिसके साथ पूरा पढ़ाई हुआ है. So for me it was very good. अभी उसमें क्या होता था कि सपोज मेरा पढ़ाई नहीं हुआ, अभी मैं रिविजन करना चालू किया, सुबह से लेकर रात तक मेरे पास 20 चैप्टर्स है, मैंने खाली 14 रिवाइज किया है या 10 रिवाइज किया है. अभी क्या होगा, फोन पे तो बात हो ही रहा है, पूरा दिन फोन पे नहीं बात हो रहा है, कितना हुआ उतना तक तो है. अच्छा एक काम करते हैं, मैं ये 5 कर रहा हूँ, तू वो 5 कर, फिर फोन करके एक दूसरे को 5-5 चैप्टर समझा देंगे, बिकॉज वरना होगा नहीं. मेरा CS तो पूरा ऐसे ही निकला था, 3-3 घंटा फोन पे एवरी एग्जाम के पहले दिन. सो दिस विल बी हेल्पफुल एंड यू कैन नॉट हैव अ न्यू स्टडी पार्टनर एग्जाम के टाइम. एग्जाम के पहले 1-2 महीना जिसके साथ भी कंफर्टेबल हो, इट हेल्प्स. सो इफ यू हैव समवन टू स्टडी विद, नॉट टू सिट इन द सेम रूम एंड स्टडी. जस्ट यू नो दैट मेरा ये 3 बज रहे, तुम ये 2 पढ़ा देना, हम ये 2 तुमको पढ़ा देगा, तुम और बाकी चैप्टर्स अपने कर लेते हैं. तो 2-2 10-10 मिनट में पढ़ाया. कवरेज करना इज इंपॉर्टेंट. फास्ट हो जाएगा ना. तुम पढ़ाया, तुम्हारा भी 2 बार पढ़ाई हो, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ. और वो पढ़ा और वो पढ़ाया, उसका भी 2 बार पढ़ाई हो गया वो चैप्टर का. सो इट्स ऑलवेज गुड दैट वे. सो दैट यू नीड टू डू, यू कैन लुक एट. दूसरा एक और चीज क्या बोल रहे हैं, पढ़ाई करते टाइम व्हाट हैपेंस, आपका 3-4 दिन मस्त पढ़ाई हुआ, उसके बाद में 3-4 दिन वापस आप देखोगे इट्स गोइंग टू गो डाउन. अभी वो चल रहा है, ठीक है, वेरी गुड. दिस इज नॉर्मल. You cannot expect to have a productivity of 12 hours of good study every day. It will go down. Your objective is यहाँ पे इसको ऊपर करके ठीक करना. अगर ये ऐसे चलेगा पूरा एग्जाम के टाइम में तो प्रॉब्लम हो जाएगा सिलेबस कवर करने में. Because even if you are revising in like what 1 month, 1.5 months, you got like what? You got like per subject you got 3-4 days to revise. 4 दिन है रिविजन करने के लिए पर सब्जेक्ट. 4 दिन में अगर ये करोगे, 4 दिन ऊपर 4 दिन नीचे, कहाँ से होगा? आधा ही सिलेबस रिवाइज होगा, फिर लास्ट में एक ग्रुप छोड़ दोगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट विल गो डाउन. अंडरस्टैंड, ये नीचे जाएगा ही जाएगा. इसको विद इन हाफ अ डे उठाने का है. और जिस दिन हुआ मूवी चले जाओ उठ करके, आओगे रिग्रेट करोगे, पढ़ने बैठ जाओगे, ज्यादा बेटर प्रोडक्टिविटी होगा. सुबह 6 बजे पढ़ना चालू करो. It's not that difficult. 24 hours. You're sleeping for 8 hours and please don't undersleep. Don't go for 3 hours and 4 hours of sleeping. Very bad idea. You sleep for your 6.5-7 hours minimum. So 7.5 घंटे ज़्यादा मत सो, 6.5 से कम मत सो. 6.5 to 7.5 is a very good decent time to sleep. सोने के बाद में 8 घंटा सो रहे हो, 8 घंटा का ढंग से पढ़ाई कर लिया बिना फोन के और बिना बाहर गए इधर उधर टाइम पास किए. सोच के देखो 8 घंटा रोज दिन में 4 पिक्चर देख पाओगे with your studying of 8 hours. Think about it. Are you understanding? The point is, what I used to do was 12 बजे तक अगर ये हुआ तो एक एपिसोड फ्रेंड्स का देखेंगे, नहीं हुआ तो नहीं देखेंगे. I used to be disciplined in that manner कि हाँ वो हुआ तो ही देखने मिलता, वरना नहीं देखने मिलता. फिर नेक्स्ट टारगेट होता 4 बजे तक ये हो गया तो फ्रेंड्स देख लेंगे एक एपिसोड, फिर 4 बजे तक वो ट्राई करना है, ये इतना तक हुआ तो आज ये मूवी चले जाएंगे देखने के लिए.
So I'm studying at 6 o'clock in the morning. I get to the table. 3 o'clock तक I will study continuously ताकि 4 बजे एक मूवी देखें, 7 बजे आके सो जाएंगे 8 बजे तक. 6 बजे से 3 बजे तक कंटिन्यूसली अगर ढंग का पढ़ाई कर रहे हो, दैट इज एन अमेजिंग स्टडी दैट यू हैव डन इन द डे. 12-13 घंटा का प्रोडक्टिव पढ़ाई एक्चुअली कोई करता भी नहीं होगा शायद. सो यू नो, डू दैट. Every 1 hour I'm going to take a 2 minute का nap. 2 minute का nap is not WhatsApping nap. It is a nap means nap. Another thing I used to do was data network दिन में 2 बार ऑन होगा, उसके बिना ऑन नहीं होगा. कोई फ्रेंड से नोट चाहिए, जो भी चाहिए वो, मतलब अगर मेरे को किसी को कुछ बोलना है तो मैं व्हाट्सएप करके छोड़ दूंगा, बट आई विल नॉट स्विच ऑन माई डेटा नेटवर्क. आई विल स्विच इट ऑन ओनली ट्वाइस अ डे. और वो नहीं कि एक बार ऑन किया तो 2 घंटा लग गए. यू स्विच इट ऑन, यू डू योर एवरी जो भी है नोटिफिकेशन देखा और विद इन 5-7 मिनट्स बंद कर दिया. जितना रिप्लाई था रिप्लाई करके बंद कर दिया. कंटिन्यूस चैटिंग नहीं कर सकते अफोर्ड. चैट पे पढ़ाई नहीं होगा, वो नहीं कर सकते. डिस्ट्रैक्शन से तो बाहर निकलना पड़ेगा. और 2 बार डेटा नेटवर्क ऑन करने, 2 बार अगर आज दिन में 3 बार कर दिया कोई काम से भी, अगले दिन खाली एक ही बार अलाउड है. बी स्ट्रिक्ट विथ योरसेल्फ, ब्राइब योरसेल्फ. इतना हुआ आज पिज्जा ऑर्डर करेंगे, इतना हुआ आज पेस्ट्री ऑर्डर करेंगे, स्विगी ऑर्डर करने का आराम से. बट ब्राइब योरसेल्फ, कंटिन्यूअसली ब्राइब योरसेल्फ. ये हुआ ये मिलेगा, ये हुआ ये मिलेगा. अपने आप को बेवकूफ बनाते जाओ. 4 महीना विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, आई एम टेलिंग यू. इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, बट यू हैव टू यू नो लॉजिकली डू दीज थिंग्स. गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे. आज रात को देरी तक पढ़े, कल सुबह उठे, आपका एकदम ये जो 4 दिन है ये तुरंत आ जाएगा. बिकॉज योर बॉडी क्लॉक एडजस्ट दैट वे. आई डू रीड अ लॉट ऑन प्रोडक्टिविटी एंड ऑल दीज थिंग्स. आपका प्रोडक्टिविटी कचरा हो जाएगा, आपका बॉडी क्लॉक एकदम नीचे चला जाएगा. सो वॉट यू नीड टू डू इज गेट अप एट द सेम टाइम. डिसिप्लिन हो जाएगा ना, बहुत ईजी होता है, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट नहीं करता, उसमें सोचने नहीं पड़ता है इतना बजे उठना है, इतना बजे सोना है, आज ये करना है, वो करना है. Another thing, scheduling is very important. If you do not have a target, you will not be able to complete the syllabus. मैं टारगेट करूंगा 20 चैप्टर्स, मैं 14 चैप्टर्स करूंगा. मैं 70% मेरा टारगेट, आई विल टेल यू, आई वॉज नेवर एबल टू अचीव मोर देन माई 70% ऑफ माई टारगेट. बट अगर वो टारगेट नहीं करता तो बहुत अच्छा से पढ़ना है, बहुत अच्छा से पढ़ना है करके 4 चैप्टर खत्म करता उतना ही टाइम. जितने चाहे मैं 14 चैप्टर्स कर रहा हूँ, उतने में मुश्किल से 8-9 चैप्टर्स कंप्लीट करता. टारगेट 20 रखा तो 14 हुआ, टारगेट नहीं रखोगे तो नहीं होगा. अब आई हैव सीन पीपल मेकिंग रूटीन्स. रूटीन कैसे बनाएंगे? 7 बजे उठेंगे, 8 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, 9 बजे ये करेंगे. दैट इज रबिश वे ऑफ मेकिंग रूटीन. डोंट स्टडी मोर देन 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे. क्या 2 सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं पढ़ने का एक दिन में? 8 सब्जेक्ट पर डे, वेरी बैड वे ऑफ डूइंग इट. इट्स नॉट अ गुड वे, इट्स वेरी वेरी बैड वे ऑफ स्टडिंग इट. डोंट कीप मोर देन 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे. माई टारगेट यूज टू बी, से फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा टारगेट है, मेरा 8 सब्जेक्ट्स है, मैं उसको डिवाइड, लाइक अकाउंट से सपोज, तो उसको मैं डिवाइड करता था कि एक होल्डिंग कंपनी है, एक अमेलगमेशन है, मे बी मेरा सिलेबस पुराना हो गया. और लेट मी टॉक माई सब्जेक्ट होंगी ना. SFM में लाइक आई पुट डेरिवेटिव्स एंड फॉरेक्स टुगेदर. आई पुट इक्विटी, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड ऑल ऑफ योर पोर्टफोलियो टुगेदर. आई पुट ऑल द रेसिडुअल चैप्टर्स टुगेदर एंड आई टू ये इसमें वो भी डाल दूंगा, कैपिटल बजटिंग एंड ऑल, और बाकी थियोरी चैप्टर्स और बाकी रेसिडुअल चैप्टर्स एक साथ. तो मेरा सिलेबस का 3 पार्ट हो गया, ये 4 पार्ट हो गया. फॉरेक्स डेरिवेटिव्स इज गोइंग टू बी रिलेटेड, इक्विटी कॉर्पोरेट वैल्यूएशन वाला चैप्टर इज गोइंग टू बी रिलेटेड. सो मैं अपना 4 पार्ट्स में किया. अकाउंट्स में हर सब्जेक्ट का मेरा 4-5 पार्ट होता था. लॉ में देयर आर ओनली 2 सेक्शंस. व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, लॉ का एक सेक्शन किया, फिर अकाउंट्स का एक सेक्शन किया, फिर SFM का एक सेक्शन किया. इस तरीके से एक सेक्शन होता था. इफ आई एम डूइंग DT, आई विल ऑलवेज डू कैप बज एंड क्या बोलते कैपिटल गेन एंड PGBP टुगेदर. उसमें भी इंटर रिलेटेड था एक जगह. सो वो 2 एक साथ हुआ, फिर दूसरा सब्जेक्ट पकड़ा. अब इससे क्या होता है, आई नो दैट देयर आर 8 सब्जेक्ट्स एंड देयर आर लेट्स से 2 पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट. सो मतलब 16 पार्ट्स है. 16 पार्ट्स के लिए मेरे पास 16 हफ्ते हैं. तो मेरे को पता है कि हर हफ्ता में कम से कम मेरे को 1 पोर्शन कंप्लीट करना है, और लेट्स से 2 पोर्शंस कंप्लीट करना है. आई हैव जस्ट गॉट कितना 16 पार्ट्स, आई हैव गॉट 8 वीक्स, 2 महीना, सॉरी, आई हैव गॉट 8 वीक्स एंड 16 पोर्शंस. 8 सब्जेक्ट्स का 2-2 हाफ कर दिया, एक सब्जेक्ट का 2-2 पार्ट कर दिया. अभी मेरे को क्या करना है, अकाउंट्स, लॉ, SFM, DT, मतलब थियोरी प्रैक्टिकल ऑल्टरनेट करते करते आई यूज्ड टू डू इट दिस वे. अकाउंट्स का होल्डिंग कंप्लीट हुआ, लॉ का ये उठा लिया, लॉ का डायरेक्टर पूरा कंप्लीट हुआ, SFM का एक पार्ट उठा लिया, डेरिवेटिव फॉरेक्स दोनों कंप्लीट हुआ, DT का कैप बज और वो उठा लिया. तो 2-2 ढाई दिन एक ही सब्जेक्ट चल रहा है. कंटिन्यूटी होना चाहिए, और कंटिन्यूटी इज लूजिंग इफ यू आर डूइंग 8 सब्जेक्ट्स इन अ डे. वेरी बैड वे ऑफ डूइंग इट. एक चंक होते हैं ना, रिलेटेड पार्ट्स होते हैं ना आपके, तो आपका फ्लो नहीं बैठता, आपका फ्लो टूट जाता है. 8 सब्जेक्ट एक दिन में तो वेरी बैड.
मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट, 2 भी इसलिए क्योंकि इरिटेशन होने लगता था, पूरा दिन लॉ की इरिटेशन हुआ तो अकाउंट्स उठा लिया, वो 2 भी इसलिए रखता था। वरना अगर दिख रहा है कि मेरे को खत्म करना तो मैं 1 दिन 2 दिन पूरा कंटिन्यूसली एक ही सब्जेक्ट कर रहा हूँ, बट एक पूरा सब्जेक्ट खत्म नहीं करता था। तो आई हैड 4 पार्ट्स, 3 पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट। सो आई नो दैट ओके आई एम लेफ्ट विथ, लेट्स से मेरे को 3 महीना में अभी पढ़ाई करना है, 3 मंथ्स बचा है, 1 मंथ रिवीजन का है, तो 2 मंथ्स में आई एम लेफ्ट विथ लाइक लेट्स से 8 सब्जेक्ट का, इसका 2 पार्ट बाकी है, इसका 3 पार्ट बाकी है, करके करके आई हैव डिवाइडेड लाइक लेट्स से आई हैव गॉट लाइक 15 पार्ट्स टू कंप्लीट इन 8 वीक्स। तो आई नो दैट 2 पार्ट्स एवरी वीक करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो 50% 30%, मतलब 30% ऑफ दिस सब्जेक्ट, 30% ऑफ दिस सब्जेक्ट इज दिस वीक का टारगेट। तो टारगेट वैसे होता था, ब्रॉड टारगेट वीकली होता था, डेली टारगेट नहीं सकोगे। वीकली टारगेट सेट करो कि इस वीक में इतना कंप्लीट हो जाना चाहिए, एंड 2 सब्जेक्ट रखो ताकि एक से इरिटेशन हो तो दूसरा पे फॉल बैक करने को हो आपके पास। एंड थियोरी प्रैक्टिकल पैरेलल वो करो, ऑल्टरनेट करो, आइदर डू 2 सब्जेक्ट्स और डू 1 सब्जेक्ट देन 1 सब्जेक्ट देन 1 सब्जेक्ट देन 1 सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट नहीं, पोर्शंस, तो रिटेंशन इंप्रूव होगा, ये सब चीज से बहुत बेटर होगा आपका। सो व्हेन यू रिवाइजिंग डू दीज थिंग्स। देन एक और चीज देखा है मैंने, दैट पीपल गिव अप इन द मिडल। आई गेव माई एग्जाम इन मे, आई रिमेंबर मार्च एंड तक देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, नहीं होगा मेरे से, हम छोड़ दिया पढ़ना। अप्रैल कुछ नहीं पढ़ा, हार्डली पढ़ा। एग्जाम देने के बाद वो दिया दोनों ग्रुप, एग्जाम देने के बाद वो बोला कि भाई उस समय अगर नहीं गिव अप करता तो आराम से दोनों ग्रुप टांग देता, उसका एक ग्रुप क्लियर हुआ था। द पॉइंट इज डोंट गिव अप, देयर आर सो मेनी ऑफ यू हु आर गिविंग द एग्जाम, एवरीबडी इज इन द सेम सिचुएशन, everybody is frustrated, everybody is irritated, recognize that fact। सब irritated है, सब दिमाग में जला हुआ है, सब कोई एकदम पढ़ पढ़ के पागल हो गए, सब कोई गाली दे रहा है। बट आई नीड टू डू बेटर, आई नीड टू हैव दैट इमोशनल कंपीटेंस ऑल्सो। दूसरा चीज, वेरी स्मॉल थिंग्स, टेक अ शावर। इरिटेट हो रहे हैं, आई हैव सीन पीपल, एक दिन ना वो घर पे है, बैठा है पूरा दिन नहा रहा ही नहीं है, वो सब नहीं करने का। I'll tell you, this is again scientific. I read a lot on productivity. Productivity के हिसाब से बता रहा हूँ। जिस दिन एकदम इरिटेशन हो रहा है और आज 2 घंटा भी पढ़ना बाकी है और पढ़ने का एकदम भी नहीं हो रहा है, go take a bath. Don't do too many times in a day, just once in a day. मतलब once का twice. Once I'm assuming कि वो by default है. So twice, second time. It helps. Trust me, it helps. Your stress level goes down the moment you take a shower. It is scientific. Your stress level goes down the moment you take a hot shower. Do that. It will help. दूसरा चीज, घर के अंदर रह रह के दिमाग खराब होता है। अभी टेरेस पे जाके घूमते घूमते पढ़ना एंड ऑल, इट डिड नॉट हेल्प मी पर्सनली। क्यों? वो चिड़िया वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, एवरीबडी स्टार्ट्स डेydreaming at the end. What I do is get out of the house, take a 15-minute walk around the house and get back again and start studying, because your blood circulation also needs to work. ये क्यों बोलते इट वॉज अ गुड डे, इट वॉज अ बैड डे, आज लकी डे है, आज अच्छा डे है, आज खराब दिन है, आज प्रोडक्टिविटी हाई, आज प्रोडक्टिविटी कम है, यही सब चीज से आता है। बहुत ज्यादा नॉनसेंस खाना भी नहीं खाने का। दीज थिंग्स इम्पैक्ट योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, इज गोइंग टू बी क्वाइट इंटर रिलेटेड। एटलीस्ट एग्जाम के 1 हफ्ता पहले मेरा, आई मीन आई यूज्ड टू मेक श्योर दैट आई वुड नेवर ईट आउट, एंड दैट यूज्ड टू बी वेरी गुड टाइम फॉर माई मॉम, बिकॉज यू नो आई एम नॉट ऑर्डरिंग आउटसाइड एंड आई एम ईटिंग वट एवर हेल्दी शी इज गिविंग इट टू मी। तो मैं ज्यादा उनको इरिटेट नहीं करा, तो शी इज वेरी हैप्पी। आई एम हैविंग फ्रूट्स एंड cucumber and everything, because I know that 1 week I need to be in my best frame of mind. एग्जाम के 1 हफ्ता पहले से नो बाहर का खाना। सो छोटा छोटा चीज है, अगर आपको लगता है आई वॉन्ट टू अप्लाई, यू अप्लाई, यू डोंट वॉन्ट टू, इट्स योर चॉइस। बट वो गुड डे, फील गुड फैक्टर वो कहां से आएगा? फीलिंग पॉजिटिव, यही सब चीज से आएगा। गेटिंग अप एट द सेम टाइम एवरी डे एंड ऑल, जो भी चीज बोल रहा हूं, यू कैन लुक एट दैट एंड गेट डाउन एंड वो 15 मिनट का वॉक ले लेने का, जिस भी दिन इरिटेशन होता है, और एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे तो घर के नीचे उतरने का। बिकॉज आई यूज्ड टू बी डेज वेयर आई हैव नॉट इवन 2, 2.5, 3 दिन हो गए जहां मैंने अपने रूम के बाहर नहीं निकला है। रूम के बाहर मतलब रूम, किचन, किचन रूम, उतना ही निकलना होता था। बट you need to get down 2 days or 3 days, and please don't listen to sad songs, because the kind of songs, the kind of environment you have, that is the kind of feeling you will have. I know people slow songs and romantic songs, and don't listen to that shit. At least what I used to do was, मेरा थोड़ा मेरे को शौक रहता था, अभी भी है. So संस्कृत तो काफी सारे बहुत अच्छे powerful beats है, like Shiv Tandav is to like amazing beats. Like I'm not even talking from a religious point of view. Like the beats are very, very good. It's crazy beats. So get down, put your earphones, get those energetic 2-3 songs. Same song 2-3 बार सुन करके वापस आ जाओ, तो याद हो गया अभी तो काफी सारा संस्कृत और ये सब याद है. So these things help. You boost yourself. अरे तुम आइटम नंबर सुन के आओ, चलेगा.
मतलब डोंट लिसन टू सैड सॉन्ग, सो यू लिसन टू सम नॉनसेंस क्रेजी सॉन्ग एंड भोजपुरी सुनो, जो करने का करो, करके आने का वापस पढ़ाई पे, मूड एकदम मस्त करके आने का. यू हैव टू डू दैट. अपने आप को बेवकूफ़ बनाते जाओ कि भाई 6 महीना वापस नहीं पढ़ने बनेगा. आई कैन नॉट सिट बैक होम एंड स्टडी फॉर अनदर 6 months, सो लेट मी जस्ट पुट माई हार्ट एंड सोल इन टू इट. पढ़ना तो पड़ेगा, कोई उपाय नहीं. लेट मी जस्ट एवरी टाइम इट विल नॉट वर्क, जो बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट कॉन्शियसली थोड़ा बहुत भी ट्राई करोगे, 30, 40, 50, 60% of the time also if you can boost it up, it's going to be working wonders. And bribe yourself. उसमें वो नहीं करने का, मतलब वो चीटिंग नहीं करने का. You're cheating yourself because nobody is going to tell you कि इतना पढ़ लो तो तुमको चॉकलेट मिलेगा. वो क्लास 1, 2 वाला चीज़ गया. अभी अपने आप को लॉलीपॉप देना पड़ेगा. मतलब you will have to bribe yourself and fool yourself in the entire process. So एग्जाम वाले दिन के लिए 2-3 चीज़ बोलना था. एक फर्स्ट डे एग्जाम आई पैनिक्ड, माई फाइनल आई रिमेंबर. खाना वाना खा के जाना पड़ेगा ढंग से. यू कैन नॉट बी हंग्री बिकॉज यू आर पैनिकिंग. यू विल रीच योर एग्जाम सेंटर 1:30ish. यू आर लीविंग योर हाउस लेट्स से अज्यूमिंग 12:30ish. 5 o'clock तक यू आर राइटिंग योर पेपर. So please, you need to be hydrated. Like my exam was in May and the center was absolutely in a dismal condition. So first day मैंने गलती कर दिया था. नेक्स्ट डे तो आम का पानी, नींबू पानी, watermelon juice and all. I used to carry 3-4 things because it used to be like hot like hell in Calcutta. And in that weather, and I used to reach the exam. Everybody reaches the exam by 1:30. Nobody wants to take a chance. So उतना धूप है, इतना गर्मी है, and you're stressing out, you're sweating more probably. So stay hydrated. I know very small things. First day of my accounts paper was like I panicked. मेरा 50 मार्क कंप्लीट हुआ था 2 घंटे में. उसके बाद तो लगा कि अब तो कोई फायदा नहीं है दे करके get back home. Like 5 minutes I was just sitting thinking क्या करे. It was panic or whatever you call it. But then and I'm not making up anything. 50 marks and I was like नहीं यार, अब तो मतलब 6 महीना घर पे पॉसिबल नहीं है. लग जाओ, पढ़ो, जैसे जो करना है करो, just write it. I completed my paper. That's what I'm saying. 3rd hour का जो स्पीड है उसको 1 और 2 में लगाओगे तो पेपर होगा. मेरा स्पीड भी अच्छा है. आई राइट वेल, मतलब आई राइट फास्ट. माई हैंड राइटिंग इज रबिश बट आई राइट, माई स्पीड इज गुड. हैंड राइटिंग फैला करके बड़ा कर देता था तो लेजिबल हो जाता था. सो स्टे हाइड्रेटेड एग्जाम टाइम पे, डिपेंडिंग ऑन द मंथ, वट एवर बी द मंथ, you go thirsty, you feel like you need that energy. So नींबू पानी, whatever you want to keep, नमक, चीनी, पानी, नींबू पानी तो रखने का, शिकंजी तो रखने का. बीपी लो हो रहा है, ये हो रहा है, whatever feel bad factor होगा वो सब ठीक हो जाने का. So 2-3 जूस वूस कुछ भी कैरी करने का. डोंट फील दैट I'm being childish, खाना वाना कैरी कर रहे हैं ऑल. इट्स ओके, डजंट मैटर. एक तो बॉटल पी करके तुरंत एग्जाम में घुसता था, वैसा कुछ नहीं पीता था. जस्ट गुड स्टफ, गुड हेल्दी स्टफ आई यूज्ड टू ड्रिंक एंड आई यूज्ड टू गेट इन द एग्जाम हॉल. एग्जाम हॉल में ही पानी वानी कैरी तो तुम लोग करते ही हो. स्टे हाइड्रेटेड, मतलब वॉट एवर इज रिक्वायर्ड ना, मतलब जो चीज मांगता है आपसे एग्जाम, आप सब चीज करिए. जो भी चीज आपका रिक्वायर्ड है, यू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग पॉसिबल टू गेट थ्रू विद द एग्जाम. बोलो तुम लोग का क्वेश्चन. आई जस्ट वांट टू चेक इफ आई एम लेफ्ट विद एनीथिंग टू टॉक अबाउट. डार्क चॉकलेट से नींद आता है कि जाता है, आई डोंट नो, बट यस अगेन आई मीन दैट्स अ गुड पॉइंट एक्चुअली. बोलते हैं कि एग्जाम के पहले चॉकलेट खाना चाहिए बिकॉज दैट फील गुड फैक्टर कम्स इन. सो ये मेरा आदत लगा था CS के एग्जाम के टाइम में. CS सेंटर में एक दीदी रहती थी साइड में, वो एवरी टाइम शी यूज्ड टू लाइक चॉकलेट. रोज चॉकलेट ठूसे जा रही है तो हद हो गया. तो आई वाज लाइक यार अब तो हमको भी करना है. लाइक एवरी एग्जाम के पहले आई स्टार्टेड हैविंग चॉकलेट. देयर इज, मतलब अगेन साइंटिफिक, देयर आर सम प्रॉपर्टीज व्हिच मेक्स यू फील गुड. एग्जाम में एक और चीज, आप लोग जब क्वेश्चन करोगे तो ये चीज ध्यान रखिएगा दैट आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, टिक कर दिया, पार्ट बाकी है, पार्ट ABC है, उसका एक पोर्शन बाकी है, उसको मार्क करके रखने का, बिकॉज वो छूट जाता है कई बार. मेरा एक 2 मार्क्स का IDT में छूटा हुआ है फाइनल में. आई स्टिल फील बैड कि वो 2 मार्क आता था यार, आता हुआ चीज छूटेगा तो बहुत खराब लगता है. सो प्लीज मार्क दैट दिस पार्ट इज मेरा पेंडिंग. और उसमें भी यू विल नॉट बी एबल टू रिवाइज 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस. तो आपको ध्यान रखना है इसको रिवाइज करने का, इसका पार्ट भी रिवाइज करने का, इसका ये रिवाइज करने का. ये मतलब अब इसको देखने का जरूरत नहीं है, ये मतलब रिवाइज कर लेना, ये मतलब पेंडिंग है. दैट यूज्ड टू बी माय नोटेशंस बिकॉज यू कांट रिवाइज द एंटायर पेपर. व्हाट इफ आई एम लेफ्ट विद 7 minutes, व्हाट विल आई डू एट द एंड ऑफ द एग्जाम? इधर उधर नहीं ताड़ने का, ये करने का कंप्लीट. जो रिवीजन सर्कल किया हुआ है, इट्स बेटर नॉट टू रिवाइज टू, बिकॉज सारा रिवाइज करने का मन नहीं करता. मेरा तो कभी, आई हैव नेवर रिवाइज्ड इन माय स्कूल पेपर्स आल्सो, बट फ्रॉम द टाइम आई गॉट दिस हैबिट कि ये जो 2 क्वेश्चन सर्कल किया हुआ है, 3 पार्ट सर्कल किया हुआ है, तो वो रिवाइज पक्का होगा. बिकॉज यू हैव अ डाउट कि ये वाला एक बार देख लो, ठीक हो जाएगा शायद. सो अप्लाई दीज थिंग्स. आई डोंट नो, आई हैव गिवन यू लाइक 100 थिंग्स टू पॉन्डर ओवर, बट आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल ऑल दीज थिंग्स. और बोलो, और कुछ है?
एनीथिंग दैट आई एम मिसिंग आउट? आई विल ऑल्सो चेक वंस अगेन. कॉफी वॉफी देखो एग्जाम के टाइम में थोड़ा बहुत तो देखो मैं भी लेता था, मेरा आदत नहीं है. आई एम स्कैर्ड ऑफ गेटिंग हैबिचुएटेड टू एनीथिंग, सो आई डोंट हैव एनी सौंफ सुपारी. और एग्जाम के टाइम में आई नो पीपल स्टार्ट गेटिंग ऑल दीज हैबिट्स की कुछ चबाने के लिए चाहिए एंड ऑल दैट, बट आई यूज्ड टू ट्राई टू कीप आउट ऑफ इट. वो सब कुछ वो बोलने का है, वो तुम्हारा दिमाग का चीज़ है. आई डोंट हैव एनी हैबिट ऑफ, हाँ सर दुखता था किसी दिन तो चाय ले लेता था या कॉफी ले लेता था. दैट यूज्ड टू हैपन लाइक वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक, बट नॉट मोर देन दैट. डोंट कंपेयर योर प्रेपरेशन विद एनीबडी एल्स कि उसका बहुत ज़्यादा है तुम्हारा बहुत कम है. मे बी उसका आर्टिकलशिप लीनियंट था तुम्हारा नहीं था, उसका टाइम ज़्यादा है कम है, वट एवर इट इज़, यू गो अकॉर्डिंग टू योर स्केड्यूल. मेरा इतना चैप्टर्स पर वीक का टारगेट है, मेरे को ये खत्म करना है, इतना % कंप्लीट होना चाहिए. आई एम लेफ्ट विद 5 सब्जेक्ट्स पूरा एंड आई एम लेफ्ट विद लेट्स से 2 months. सो 8 weeks 5 सब्जेक्ट्स, मतलब 8/5 इतना सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब इतना % ऑफ एनी सब्जेक्ट. सो 8 weeks 5 सब्जेक्ट्स कितना होगा पर वीक, कितना सब्जेक्ट करना होगा? 5/8, दैट्स गोना बी हाउ मच? 62%. सो इवन इफ आई हैव डन 30% ऑफ 2 सब्जेक्ट्स आई एम ओके. मेरे को 60% कंप्लीट करना है, एकदम रफ, एकदम 2 मिनट में तुम्हारा कैलकुलेशन हाथ पे है. 60% पर सब्जेक्ट करना है, मतलब 30% भी इस हफ्ता 2 सब्जेक्ट का कर लिया तो चलेगा बिंदास. 60% ऑफ 1 सब्जेक्ट नीड्स टू बी कंप्लीटेड पर वीक. सो टारगेट पर वीक के हिसाब से देखना पड़ेगा. अनलिमिटेड रिसोर्सेज और नोट्स होता है, प्लीज हर जगह भागने का जरूरत नहीं है. अगर आपने मेरे से SFM पढ़ा है तो आप मेरा मटेरियल फॉलो करिए, मेरे से नहीं पढ़ा तो प्लीज मेरा मत करिए. बिकॉज एक बार जहां से जो पढ़ाई की है वहीं पे स्टिक करने का. मेमोरी फोटोग्राफिक आई एम टेलिंग यू, सेम चीज यू स्टडी फ्रॉम 2 places, यू विल हैव अ प्रॉब्लम. ये उधर वो रेकमेंड कर रहा है, वो उधर वो पेपर कर रहा है, वो उधर वो कर रहा है, फालतू दिमाग नहीं लगाने का. ट्राई टू गेट एज मच कवरेज एज पॉसिबल विद द इंस्टीट्यूट मटेरियल. आइदर whoever's provided you the material or the institute material, whatever you're following. RTP mock and all gets added, but again I'm telling you, don't do 1 day full 1 week is revision of, मतलब इसका पेपर सॉल्व करेंगे खाली. ट्राई टू डू इट सब्जेक्ट चैप्टर वाइज. मतलब पोर्टफोलियो पढ़ा था, पोर्टफोलियो का RTP मॉक भी देख लिया तुरंत. स्पीड बढ़ेगा उससे, बहुत बढ़ेगा, क्योंकि वही सम्स देखे हो, वही सेम सम RTP में आया हुआ है. पेपर ऑर्डर में करने का कोई जरूरत नहीं है. Another thing that happens is generally what used to happen earlier was 20 marks के क्वेश्चन कंपलसरी होता था एंड 16 मार्क के बाकी क्वेश्चंस होते थे. जो 20 मार्क का क्वेश्चन होता है वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उसको अगर एंड में रखना है तो एंड में रख सकते हो. जो 20 मार्क का क्वेश्चन होता था, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओल्डर पैटर्न, नया पैटर्न में देखना पड़ेगा. 20 मार्क का जो पुराना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 कंपलसरी एंड बाकी में से एक ऑप्शन होता था. 20 मार्क का क्वेश्चन यूज्ड टू टेक मोर देन 30-35 मिनट्स, बट यू नो यू हैव 16.5 मार्क्स के लिए पर हाफ एन आवर, और वो 40-45 मिनट्स ले लेता था एक 20 मार्क का क्वेश्चन. तो आई वुड ट्राई टू अटेम्प्ट दैट लेटर. और एग्जाम में बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि कहां से स्टार्ट करें. अगर हाँ, अगेन दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन कि अपने को कौन सा विच ऑप्शन टू लीव आउट, विच ऑप्शन नॉट टू लीव आउट. दैट यूज्ड टू बी अनदर क्वेश्चन. मतलब कि कैसे डिसाइड करें कौन सा, दोनों में आधा कुछ ही नहीं आ रहा मेरे को, तो जिसमें हाईएस्ट मार्क्स का एकदम ही, मतलब कुछ ही नहीं लिख पाओगे, बहुत ही गंदा हालत है, उसको लीव आउट कर देने का. तो एलिमिनेशन इज ईजियर देन चूजिंग 5 क्वेश्चंस. चूजिंग 5 और 6 क्वेश्चन से ज्यादा फास्टर होगा कि आप एक क्वेश्चन एलिमिनेट कर दो. तो वेरी क्विकली ब्राउज थ्रू इट. और अगर उतना टाइम नहीं है, बिकॉज देयर इज नो रीडिंग टाइम, वी यूज्ड टू गेट एन ISC, वैसा कोई रीडिंग टाइम नहीं है, तो क्वेश्चन 1 जो पढ़ रहे हो वो आता है तो उससे चालू कर दो, बाकी देखा जाएगा. बाकी लिखते लिखते हाथ दुखने लग गया तब वो 2, 3, 4 में क्या एलिमिनेट कर सकते हैं वो करने का. तो एटलीस्ट पहले एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर देने का, और फिर क्या चूज करना है नहीं चूज करना बाद में देखेंगे. या तो स्ट्राइक कर जाएगा, ये वाला तो पक्का ही आता है, ये वाला ले लेते तुरंत. 2 क्वेश्चन तो दिख जाएगा कि 2 तो पक्का ही करना है, तो 2 चालू कर देने का, फिर बाकी सोचा जाएगा बाद में. 2 तो खत्म करो, फिर थक जाएंगे, रेस्ट मिल जाएगा अंगुली को भी. बोलो और बोलिए. एनीथिंग एल्स? नथिंग? श्योर? सोच लो कुछ और क्वेश्चंस एग्जाम को लेके या रिवीजन को लेके तो बताओ. रीच योर दिस थिंग इन टाइम, कैरी फूड, लिक्विड एंड एवरीथिंग. एग्जाम के पहले दिन यू हैव टू स्लीप ऑन टाइम यार, बिकॉज आई हैव, एंड वो अगर सुबह 4-5 बजे उठने का आदत डालोगे तो ऐसे नींद आ ही जाएगा एग्जाम के पहले दिन भी. और एग्जाम वाले दिन, क्योंकि एग्जाम के पहले दिन 4-8 बजे सो ही रहे तुम, सुबह 5 बजे उठेगा ही नींद, 5 बजे से पढ़ना चालू करेगा. 9 घंटा का मस्त पढ़ाई होता था एग्जाम के जस्ट पहले, एंड वो 9 आवर्स इमीडिएटली बिफोर द एग्जाम. यार यू जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट यू कैन गिव फॉर द एग्जाम. थिंक अबाउट इट. एंड एग्जाम वाले दिन ऐसे भी तुम्हारा आके कुछ नहीं होने वाला है, आते ही सो जाने का. 8 घंटा पढ़ा, 3 घंटा का पेपर दिया, 12-13 घंटा का ऐसा स्ट्रेसफुल टाइम था, और क्या करेगा. बोलो. सॉर्टेड? ऑल गुड?
योर क्वेश्चन इज कि इफ आई एम स्टार्टिंग विद वन सब्जेक्ट, सो वो जो मैं एडवाइस दे रहा था कि आप 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा पर डे मत करो, तो इस क्वेश्चन इज कि मेरा फिर एक स्टार्टिंग में जो उठाया वो लास्ट में कुछ नहीं होगा वाला चीज़। तो बट व्हाट हैव आई डन इज आई हैव ब्रोकन एवरी सब्जेक्ट इनटू 2-3 पार्ट्स। तो मैंने जो स्टार्टिंग में उठाया होगा उसका दूसरा पार्ट तो बहुत बाद में उठाया होगा, उसका तीसरा पार्ट तो बहुत बाद में उठाया होगा ना। तो एक सब्जेक्ट का एक एरिया बहुत स्टार्टिंग में आया होगा, बट दूसरा तो बीच में और लास्ट में आया होगा ना। तो वैसे नहीं हो रहा है कि मेरा एक सब्जेक्ट बहुत खराब है, एंड कंटिन्यूटी चाहिए। एंड हाँ, उसमें व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि जिस भी टाइम इरिटेट होता था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बीच बीच में किया हुआ है सारा, मतलब वो पूरा 60 डेज का 70 डेज का पीरियड में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलता है और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी। एंड आई यूज्ड टू ट्राई लाइक व्हेन आई प्लान माई स्टडीज आई मेड इट अ पॉइंट दैट माई लॉ का जो सेकेंड वाला पार्ट है वो लास्ट में हो रहा है। डायरेक्टर रिटेंशन इज ईजियर, जो गंदा रिटेंशन वाला पार्ट है उसको पुश किया है लास्ट में। ऑडिट का मैंने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स लास्ट में किया था, क्योंकि उसमें मगिंग अप था थोड़ा सा। बाकी ऑडिटिंग स्टार्टिंग में किया था। ऑडिटिंग का कॉर्पोरेट डायरेक्टर वाला चैप्टर मैंने लॉ के साथ किया था। सो यू हैव टू मेक लाइक म्यूचुअल फंड ऑफ SFM एंड म्यूचुअल फंड्स ऑफ अकाउंट्स वाज डन टुगेदर बिकॉज देयर वाज ओवरलैप। सो यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन्स व्हेन यू आर डूइंग दिस। जो हाईएस्ट रिटेंशन है उसको फर्स्ट रखने का, जो लोएस्ट रिटेंशन है उसको लास्ट में रखने का। अब टैक्स मेरा वीक पॉइंट था, आई हैड टू पुश माई टैक्स टुवर्ड्स द एंड। सो मतलब योर स्केड्यूलिंग एंड यूर नॉट डूइंग, इसीलिए तो ब्रेकअप करके सब्जेक्ट का 2-2, 3-3 पार्ट, 4 पार्ट करके, तो एक सब्जेक्ट वैसे स्प्रेड आउट हो गया था। एंड अकाउंट्स का रिवीजन ऑफ कोर्स आई रिमेंबर आई हैड केप्ट द लास्ट 10 days फॉर अकाउंट्स, तो मैंने उसको रिवाइज नहीं किया था। वो एग्जाम के पहले ही 3-4 दिन मतलब 1.5 दिन की जगह वो 7-8-9 days था। एंड ऑल्सो आई रिमेंबर एग्जाम के पहले का जो 10 days था उसमें अकाउंट्स चल रहा था, एंड एवरी मॉर्निंग में 2 घंटा लॉ या ऑडिटिंग का रिवीजन चल रहा था। मैंने रिवीजन वैसे प्लान किया था कि 12-13 दिन का अकाउंट्स का रिवीजन होगा, एंड एवरी डे मॉर्निंग में 3 मतलब लॉ ऑडिट का वो जो गंदा वाला पोर्शन था जो मेरे को इरिटेटिंग लगता था उसका मैंने रिवीजन किया था। तो अकाउंट्स लॉ ऑडिट कितना ईजिली गया मेरा साथ साइड बाय साइड। SFM मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था बिकॉज आई वाज प्रीटी ओके विद दैट। SFM यूज्ड मतलब आई हैड प्रूवन एवरी सिंगल फॉर्मूला इन SFM, सो आई वाज एब्सोल्युटली नॉट वरीड अबाउट SFM। और बोलो और क्या डाउट, सोचो और कुछ क्वेश्चन बताओ।